So hello students. So this is the last lecture of the series, FARRE series. I hope students you've understood all the previous lectures and I hope you've got a good revision out of it. तो ये एक लास्ट लेक्चर खत्म करते हैं न्यूरो एनाटॉमी का, जो हमेशा बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को. हेलो हेलो, हाय इकरा, हेलो प्रसन्नता, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. तो न्यूरो एनाटॉमी व्हाट आर इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं इसको. हाँ, so it will be easy for you. Yes, hello Hedwin. So we'll just first start with क्या ना, ये MCQs आते हैं इस पे या शॉर्ट नोट आते हैं on the branches of vertebral artery, basilar artery, vertebral artery, basilar artery, and the internal carotid artery. So what are the branches? What are the branches of relations of lateral ventricle? देखते हैं, मैं बोलता हूँ. So what are the branches of vertebral artery? चलो let us discuss this. आप आंसर करिए. So let it be an interactive session. What are the branches of vertebral artery? Vertebral. Any guesses? बोलिए vertebral के branches. वैसे vertebral artery is a branch of the first part of, yes, vertebral artery is a branch of the first part of subclavian artery. ये जो vertebral artery है ना, ये foramen transversarum में जाती है of C6 cervical vertebrae. C6 में जाती है ये, फिर foramen transversarium से ये atlas को क्रॉस करती है and फिर foramen magnum से, ठीक है, it enters the skull to form the basilar artery. What are the branches of vertebral artery? Anyone? Answer this answer. What are the branches of vertebral artery? Answer करिए. 1. Anterior spinal artery. Anterior spinal artery which runs in, ये anterior aspect of spinal cord पे run करती है in the midline of the spinal cord. Second होती है posterior spinal. Anterior spinal, posterior spinal. And तीसरा आइका नहीं है प्रसन्नता, नॉट AICA, इट इज पाइका. पाइका वो पाइका, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी. एंड ये आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए बच्चों, बिकॉज ये जो पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी होती है, thrombosis of this artery leads to a syndrome. Yes, बोलिए, what is that syndrome known as? Thrombosis of posterior inferior cerebellar artery leads to a syndrome. Any guesses? बच्चों गैस कर सकते हो वो सिंड्रोम का नाम क्या है? चलो आंसर दिस आंसर, कम ऑन, पता होगा आपको. लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम. वेरी गुड प्रसन्नता, लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम, इसका दूसरा नाम है, द अदर नेम फॉर दिस इज वॉलनबर्ग सिंड्रोम. वॉलनबर्ग सिंड्रोम, थैलेमिक सिंड्रोम नहीं, इट इज द लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम, आल्सो नोन एज वॉलनबर्ग सिंड्रोम. The thrombosis of posterior inferior cerebellar artery leads to Wallenberg syndrome or the lateral medullary syndrome. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब vertebral joints to form what? Basilar artery. So what are the branches of basilar? Basilar artery के branches क्या होता है? चलो बोलिए बच्चों. ये basilar artery है ना, branches देते हैं pons को. देखिए branches to the pons. What do you call them as? Pontine artery. Pontine arteries. Pontine arteries, or these are also known as paramedian branches. Paramedian branches. Any guesses? अगर ये paramedian branches, हाँ, अगर thrombosis होता है, ये paramedian branches का effect होता है, तो what is that known as? Any guesses बच्चों? What is that known as? Thrombosis of this paramedian branches or thrombosis of the pontine branches of vertebral artery leads to. Any guesses? Yes, come on बच्चों बोलो. What is that syndrome known as? Thrombosis of pontine branches. Millard-Gubler syndrome. Millard-Gubler syndrome, याद है बच्चों Millard-Gubler syndrome? इसमें क्या what are the structures affected in Millard-Gubler syndrome? एक तो 7th nerve होती है, एक 6th nerve होती है, and corticospinal tracts होते हैं. Corticospinal tracts. That is Millard-Gubler syndrome. And thrombosis of the pontine branches of basilar artery, इससे ये syndrome होता है, which is known as Millard-Gubler syndrome. These are the brainstem syndromes. Millard-Gubler syndromes में structures के affected होता है, 6th nerve, 7th nerve along with the corticospinal tracts. So corticospinal tracts affects होता है बच्चों. So what happens? What is the person comes to us with?
बोलिए बच्चों, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट अफेक्ट होता है तो कॉन्ट्रालैटरल हेमिप्लीजिया होता है, कॉन्ट्रालैटरल हेमिप्लीजिया। सेवन नर्व इफेक्ट होता है, सेवन नर्व, सो देयर इज इप्सिलैटरल पैरालिसिस ऑफ द फेस, इप्सिलैटरल पैरालिसिस ऑफ द फेस, राइट। एंड सिक्स नर्व इज अफेक्टेड। सिक्स नर्व क्या सप्लाई करता है? लैटरल रेक्टस, लैटरल रेक्टस को सप्लाई करता है। तो लैटरल रेक्टस इज पैरालाइज्ड, so you get a medial squint। तो इसमें क्या होता है? an ipsilateral medial squint and ipsilateral paralysis of face, ये होगा lower motor neuron type of paralysis along with a contralateral hemiplegia, and ये syndrome को आप बोलते हैं Millard-Gubler syndrome, Millard-Gubler syndrome, correct? Okay, so pontine arteries, second is labyrinthine, labyrinthine artery. Any other arteries? Branches of basilar. Third is anterior inferior cerebellar artery. Anterior inferior cerebellar artery. Fourth is superior cerebellar artery. Superior cerebellar artery. ये सब MCQs में आते हैं बच्चों. And the last one is posterior cerebral artery. Posterior cerebral. So what are the branches of basilar artery? एक होगा pontine branches or the paramedian branches of basilar. Labyrinthine artery. Anyone, can anyone tell me ये labyrinthine artery कौन से foramen में जाती है? चलो आंसर स्टूडेंट्स। ये जो labyrinthine artery है, it enters into a foramen of the skull। ये कौन सा foramen होता है? labyrinthine artery। Any guesses? Come on students, come on, let it be an interactive session। labyrinthine artery कौन से foramen में जाती है? along with the 7th nerve, 8th nerve। Yes, any guesses? Come on students, you can answer this। तब पढ़ाई हो गया आपका। 7th nerve, 8th nerve, labyrinthine artery एक फोरामेन में जाती है। ये फोरामेन पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में होता है। हाँ, इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस। मोहम्मद, एक्सटर्नल नहीं है बच्चा, इट्स इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस, इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस। वेरी गुड प्रसन्नता, वेरी गुड। ट्यूबुलर नहीं है। ओके, सो दीज आर द ब्रांचेस ऑफ बेसिलर आर्टरी। एंटीरियर इंफीरियर सेरेबेलर, सुपीरियर सेरेबेलर एंड पोस्टीरियर सेरेबल। अब एक लास्ट आर्टरी बाकी अपनी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंटर्स द स्कल थ्रू विच फोरामेन? एनी गेसेस? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वो कौन सा फोरामेन है बेस ऑफ द स्कल से जिसमें इंटरनल कैरोटिड आर्टरी चली जाती है? यस, चलो कम ऑन स्टूडेंट्स, यू कैन आंसर दिस। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंटर्स इनटू विच फोरामेन? कैरोटिड कैनाल। एक्सलेंट कुलदीप, इट इज कैरोटिड कैनाल। एंड कैरोटिड कैनाल से ये अंदर जाती है, बट इनसाइड द स्कल स्टूडेंट्स, इनसाइड द स्कल ये कौन से फोरामेन से आती है अंदर? स्कल के अंदर अगर आप देखते हो तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कम्स थ्रू अ डिफरेंट फोरामेन। व्हाट इज दैट फोरामेन नोन एज? यस, फोरामेन ऑफ मोनरो नहीं बच्चा, फोरामेन ऑफ मोनरो फोर्थ वेंट्रिकल में फोरामेन ऑफ मोनरो इज इन द फोर्थ वेंट्रिकल। फोरामेन ऑफ मोनरो नहीं है बच्चा, नो, इट एंटर्स इनसाइड द स्कल थ्रू, एक मिनट नहीं, देखो, वन मोमेंट, आई टेल यू जस्ट वन मोमेंट। क्या ना, ये कैरोटिड कैनाल है सपोज, ये कैरोटिड कैनाल है। हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस टू यू नाउ? ओके, चलो अंडरस्टैंड दिस। ये देखो, ये इंटीरियर ऑफ स्कल है एंड ये बेस ऑफ द स्कल है। ये स्कल है सपोज, ये स्कल है ऐसे। चलो, ये है बेस ऑफ द स्कल एंड ये है इंटीरियर ऑफ द स्कल, इंटीरियर ऑफ द स्कल। हाँ, ये स्कल का बेस है, ये इंटीरियर ऑफ द स्कल है। अब बच्चों बोलो, व्हाट इज दिस फोरामेन? ये क्या फोरामेन है? दिस इज द कैरोटिड कैनाल, कैरोटिड कैनाल। एंड ये जो फोरामेन है, ये कौन है? फोरामेन लैसरम, मतलब सी कैरोटिड कैनाल समझ में आ रहा है? कैरोटिड कैनाल इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द स्कल, मतलब स्कल के अंदर देखोगे तो कैरोटिड कैनाल इज नॉट सीन। कैरोटिड कैनाल खाली बेस ऑफ द स्कल पे होता है, whereas जो फोरामेन लैसरम है ना, वो स्कल बेस पे नहीं होता है, वो इंटीरियर में होता है। So now what happens? देखो, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंटर्स द स्कल थ्रू कैरोटिड कैनाल, ये कैरोटिड कैनाल के अंदर जाती है। फिर ये फोरामेन लैसरम के पोस्टीरियर वॉल से इट एंटर्स इनसाइड द स्कल थ्रू द फोरामेन लैसरम। समझ में आ रहा है ये? So base of the skull पे it enters into which foramen? Carotid canal. But inside the skull it comes to which foramen? Foramen lacerum. ये याद रखना बच्चों। अब जैसे ये स्कल के अंदर आ गई इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, yes, which to what structure is it related? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, ये कौन से स्ट्रक्चर को रिलेटेड होती है स्कल के अंदर?
आंसर दिस बच्चों, आंसर दिस। तो बहुत सारे एमसीक्यूज, बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। कम ऑन, आंसर दिस। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी स्कल के अंदर आई तो वो किसको रिलेटेड होती है? इट इज रिलेटेड टू समथिंग, एनीवन? इट इज रिलेटेड टू अ बिग साइनस हियर। हाँ, you know this. Cavernous sinus, very good. It lies in the floor of the cavernous sinus. वो cavernous sinus के floor में होती है ना? Yes, very good. It lies in the floor of the cavernous sinus. फिर ये cavernous sinus के roof को pierce करके it divides into two terminal branches. It then divides into two terminal branches. कौन है? एक होगा middle cerebral artery and एक होगा anterior cerebral artery. क्लियर है कोर्स ऑफ इंटरनल कैरोटिड? तो पहले ये बेस पे कौन से फोरामेन में जाएगी? कैरोटिड कैनाल पे। फिर ये इनसाइड द स्कल आएगी फोरामेन लैसरम से। इट रन्स इन द फ्लोर ऑफ द कैवर्नस साइनस, इट पियर्सेस द रूफ ऑफ द कैवर्नस साइनस, डिवाइड्स इनटू टू टर्मिनल ब्रांचेस, द एंटीरियर सेरेब्रल एंड मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। यस मोहम्मद, क्या डाउट है? मोहम्मद, व्हाट इज योर डाउट? So what are the branches of internal carotid artery? बोलो मोहम्मद, branches of internal carotid artery. 1, cavernous branches. Cavernous branches. Second, hypophyseal branches. Hypophyseal branches किसको देगी? ये pituitary gland को. So cavernous branches are within the cavernous sinus. Hypophyseal branches are given to the pituitary gland. Third होती है ophthalmic artery. Ophthalmic artery, OPTHALMIC, ophthalmic artery. चलो बच्चों, anyone, ये ophthalmic artery कौन से foramen से निकलती है? Ophthalmic artery, how does it leave the skull? Through which foramen? Any guesses? Mohammed, what is your doubt? Ophthalmic artery leaves the skull through, yes Maranya, it leaves the skull through optic canal. Optic canal, ऑप्टिक कैनाल से दो स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, एक है ऑप्टिक नर्व, दूसरी होती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी. देखो बच्चों, साइमल्टेनियसली वाइवा भी क्लियर हो रहा है, साइमल्टेनियसली स्कल के फोरामेंस भी रिवाइज हो रहे हैं, है ना? ओके, वेरी गुड. ऑप्टिक नर्व एंड ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ठीक है. फोर्थ इज जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स के अंदर क्या होता है? सीएसएफ. एंड हु सीक्रेट सीएसएफ? कोरॉइड प्लेक्सस. तो ये आर्टरीज होती हैं जो कोरॉइड प्लेक्सस को सप्लाई करती है, जिनका नाम है एंटीरियर कोरॉइडल आर्टरी. एंटीरियर कोरॉइडल आर्टरी. एंटीरियर कोरॉइडल आर्टरी क्या सप्लाई करेंगी? द कोरॉइड प्लेक्सस. फिफ्थ इज पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी. पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी. Sixth is anterior cerebral artery and seventh is middle cerebral artery. Mohammed, labyrinthine artery is actually a branch of anterior inferior cerebellar artery. Mohammed, labyrinthine artery है ना, actually branch होती है anterior inferior cerebellar artery. एक recent update है वो, but अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो labyrinthine लिखते हैं अपन. But for first year point of view, labyrinthine is fine. So I'm not telling you that. अगर नीट पीजी का क्वेश्चन है वो, तो वो आप लिखोगे anterior inferior cerebellar artery. ठीक है. अथर्व, कैरोटिको-टिम्पैनिक ब्रांच, you can write that, कैरोटिको-टिम्पैनिक ब्रांच. Okay. तो टू टर्मिनल ब्रांचेस, एंटीरियर सेरेब्रल एंड मिडिल सेरेब्रल. इसमें जो है ना, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी जो है बच्चों, इट इज अ डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ इंटरनल कैरोटिड. ये याद रखना, ये जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी होती है वो होती है डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ इंटरनल कैरोटिड. सो अगर कोई क्लॉट होता है इंटरनल कैरोटिड में, तो ये कौन से आर्टरी में जाएगा? मिडिल सेरेब्रल आर्टरी में. इट विल एंटर इनटू द मिडिल सेरेब्रल आर्टरी. पेपर्स सिंड्रोम का नाम नहीं है दूसरा, स्मरण है. ओके, तो चलो अब देखो बच्चों, ये है अपनी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. ये है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. ये होती है छोटी सी ब्रांच, एंटीरियर सेरेब्रल. एंटीरियर सेरेब्रल छोटी सी ब्रांच है, ये उसका कंटिन्यूएशन है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी. कंटिन्यूएशन है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी. ये है दो वर्टिब्रल्स जो जॉइन हो गए, बेसिलर बन के. ये है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी. एंड बच्चों, ये कौन है? ये है ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड. ये है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी. ये है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग. एंड ये कौन होगा? ये होगा एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी. तो ये है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग एंड पोस्टीरियर सेरेब्रल. ये क्या होता है बच्चों? ये है सर्कल ऑफ विलिस. सर्कल ऑफ विलिस बहुत इंपॉर्टेंट है. सर्कल ऑफ विलिस शॉर्ट नोट आता है बच्चों. सर्कल ऑफ विलिस कम्स एज अ शॉर्ट नोट फॉर यू. So how is the circle of Willis formed? Which
of the following arteries does not take part in the formation of circle of Willis? क्या हो सकता है? चलो बोलो बच्चों, क्या हो सकता है वो ऑप्शन which doesn't take part in the formation of circle of Willis? Any guesses? The circle of Willis is formed by anterior communicating artery, anterior cerebral, internal carotid, posterior communicating and posterior cerebral. तो वो कौन सी आर्टरी है? मिडिल सेरेब्रल. वेरी गुड, वेरी गुड. मिडिल सेरेब्रल आर्टरी सर्कल ऑफ विलिस में पार्टिसिपेट नहीं करती, जस्ट याद रखना है. ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड. फाइन, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलो अभी है ना एक अपन थर्ड वेंट्रिकल पहले देखते हैं. विल सी द थर्ड वेंट्रिकल. विल सी द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन. यू आर क्लियर विद द सर्कल ऑफ विलिस, यू आर क्लियर विद द ब्लड वेसल्स, यू आर क्लियर विद द वेरियस आर्टरीज, द ब्रांचेस ऑफ द आर्टरी. ओके, ये एक सेक्शन लेते हैं बच्चों. ये ना सजाइटल सेक्शन में ड्रॉ कर रहा हूँ. तो ये जो सजाइटल सेक्शन है दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू. हैव अ लुक. चलो आंसर दिस. आई स्टार्ट. व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? आप बोलिए, आप बोलिए. यू आंसर दिस. आई स्टार्ट ड्रॉइंग. व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? come on students, come on, you can answer this. You are very well prepared बच्चों. आई एम वेरी हैप्पी. बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो गई आपकी. तो ये क्या स्ट्रक्चर है? Corpus callosum. Corpus callosum. Can anyone tell me what are the type of fibers? Corpus callosum. Yes, corpus callosum. What are the types of fibers? अगर MCQ आता है corpus callosum belongs to one of the following type of fiber, क्या लिखोगे आप? ये जो corpus callosum होता है ना, ये opposite hemispheres को connect करता है. Similar areas connect करता है opposite hemispheres में. ऐसे जो फाइबर्स होते हैं इनको आप क्या बोलते हो? कमिशुरल फाइबर्स. एक्सीलेंट, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड. दिस आर द कमिशुरल फाइबर्स. एक्सीलेंट, कमिशुरल फाइबर्स. कॉर्पस कैलोसम इज द लार्जेस्ट कमिशुरल फाइबर. ये याद रखना, लार्जेस्ट कमिशुरल फाइबर. व्हाट इज दिस? ये क्या ड्रॉ किया मैंने? ये जो लाइन है, ये जो लाइन ड्रॉ किया, व्हाट इज दिस लाइन? ये जो लाइन है, हाँ, एनी गेसेस व्हाट इज दिस लाइन? तो देखो बहुत बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका. यू जस्ट बी इंटरैक्टिव. ये लाइन है फॉनिक्स. फॉनिक्स बोलते हैं इसको. तो फॉनिक्स इज एग्जांपल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ फाइबर? एनी गेसेस? फॉनिक्स बिलोंग्स टू, अब ये दोनों फाइबर्स को बिलोंग करता है. एक तो ये एसोसिएशन फाइबर को बिलोंग करता है, दूसरा कमिशुरल फाइबर को भी बिलोंग करता है. फॉनिक्स आल्सो कनेक्ट्स सिमिलर एरियाज इन द ऑपोजिट हेमिस्फीयर. फॉनिक्स आल्सो कनेक्ट्स different areas within the same hemisphere. It's a part of limbic system. Yes, Midoriya? Okay. Yes. Phonics is an example of association fiber. अगर आप phonics को commissural fiber में भी लोगे तो that is also fine बच्चों. What is this gold structure? What is this rounded structure? इसे हम बोलते हैं anterior commissure. Anterior commissure, ना? इसे हम बोलते हैं anterior commissure. What is this structure? Any guesses? ये structure को क्या बोलते हो? मतलब कॉर्पस कैलोसम एंड फॉनिक्स के बीच में जो होता है इसका नाम है सेप्टम पेलुसिडम. सेप्टम पेलुसिडम. सेप्टम पेलुसिडम. ये है लैमिना टर्मिनालिस. लैमिना टर्मिनालिस. व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? ये होगा ऑप्टिक कायस्मा. ऑप्टिक कायस्मा. ये है पिट्यूटरी स्टॉक एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी स्टॉक एंड पिट्यूटरी ग्लैंड. How is midbrain connected to cerebral hemispheres? अरे बच्चे, वो जो midbrain है ना, midbrain से है ना, ऐसे दो पार्ट्स होते हैं midbrain के, को हम बोलते हैं क्रस सेरेब्राई. मिदोरिया, तो midbrain के है ना दो ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं क्रस सेरेब्राई. उसका दूसरा नाम है cerebral peduncles. Cerebral peduncles. And that is how the cerebral cortex is connected to the brainstem. तो ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो ब्रेन स्टेम को कैसे कनेक्ट होती है? थ्रू द मिड ब्रेन. एंड उसको हम बोलेंगे सेरेब्रल पेडंकल्स. और उसका दूसरा नाम है क्रस सेरेब्राई. क्रस सेरेब्राई. ओके, क्लियर? यस ऋषिता, लिसन ऋषिता. ओके, so what is this? This is the lamina terminalis. Lamina terminalis. What is this? Optic chiasma. Optic chiasma. ये है पिट्यूटरी स्टॉक, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड. ये ग्लैंड है, ये स्टॉक है. ये बॉडीज को क्या बोलोगे? एनी गेसेस? एनी गेसेस? ये बॉडीज का नाम क्या है? ऐसे दो छोटे छोटे बॉडीज होते हैं बेस ऑफ द स्कल, बेस ऑफ द ब्रेन पे. इसका नाम है मैमिलरी बॉडीज. मैमिलरी बॉडीज. यस, मैमिलरी बॉडीज. यस, वेरी गुड सृष्टि. मैमिलरी बॉडीज. हाँ, एंड नाउ वी कम बैक. ये देखो बच्चों, ये कौन है? ये है मिड ब्रेन, ये है पॉन्स, ये है मेडुला.
midbrain pons medulla. As we come back, any guesses what is this gland known as? इसका नाम है pineal gland. Pineal gland, and जैसे आप पीछे आते हो ये होगा cerebellum. Cerebellum. हाँ, अब यहाँ पे दो कमिशरल फाइबर्स होते हैं, इनका नाम बोल सकते हो आप. इसका नाम है हैबिन्यूलर कमिशर. नंबर 1 लिख रहा हूं मैं, एंड नंबर 2 का नाम क्या है? एनी गेसेस बच्चों? नंबर 1 कौन है? नंबर 1 का नाम है हैबिन्यूलर कमिशर. हैबिन्यूलर कमिशर. एंड नंबर 2 का नाम है पोस्टीरियर कमिशर. पोस्टीरियर कमिशर. अब बच्चों ये जितने भी कमिशर्स हैं, एंटीरियर कमिशर बोलो, पोस्टीरियर कमिशर बोलो, हैबिन्यूलर कमिशर, कॉर्पस कैलोजम, ये सारे कमिशरल फाइबर्स के एग्जांपल्स होते हैं. ये क्या कनेक्ट करते हैं? ये कनेक्ट करते हैं सिमिलर एरियाज इन द ऑपोजिट हेमिस्फीयर्स. ठीक है, राइट. कैन एनीवन टेल मी बच्चा, कैन एनीवन टेल मी ये कौन है? ये कौन है? ये मैंने क्या ड्रॉ किया? देखो देखो देखो, ये कौन है? ये दो एलिवेशंस मैंने ड्रॉ किया. एनी गेसेस? अगर ये है ना, ये क्लियर होता है ना, योर सीटी एमआरआई एवरीथिंग बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ये मैंने क्या ड्रॉ किया? टीलिया कोरोइडा नहीं, अथर्व. हाँ, वो है सुपीरियर एंड इंफीरियर कॉलिकुलस बच्चों. ये ऊपर वाला सुपीरियर कॉलिकुलस, नीचे वाला इंफीरियर कॉलिकुलस. अब अपने को ऐसे क्यों दिखता है? बिकॉज हमने सेक्शन लिया. अगर आप पूरा मिड ब्रेन देखोगे ना, तो 4 दिखते हैं, 2 सुपीरियर कॉलिकुलस, 2 इंफीरियर कॉलिकुलस, है ना. अब अपन ने सेक्शन लिया, ठीक है. नाउ you tell me what is this entire area. ये जो भी एरिया आप देख रहे हो इसका नाम है डायनकेफ्लॉन. डायनकेफ्लॉन. एंड यहाँ पे एक सल्कस होती है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सल्कस? इसका नाम है हाइपोथैलेमिक सल्कस. हाइपोथैलेमिक सल्कस. ये हाइपोथैलेमिक सल्कस जो है वो डायनकेफ्लॉन को डिवाइड करती है into two parts. One, this is the thalamus, and ये जो नीचे की तरफ है, this is the hypothalamus, right? ये ऊपर वाला थैलेमस है, नीचे वाला होता है हाइपोथैलेमस. एंड लुक बच्चों, ये देखो कौन है? ये देखो कौन है? who's this? Okay, what's this number 4? What's this number 4? Any guesses? What's this number 4? दिख रहा है ना सबको? फोर्थ वेंट्रिकल. That's a fourth ventricle. And ये लाइन क्या है? What is this? What is this known as? That's the aqueduct of Sylvius. ये aqueduct of Sylvius है. ये fourth ventricle है. ये aqueduct of Sylvius है. ये होगा central canal of spinal cord. Central canal of spinal cord. Okay बच्चों, just have a look at this section. ये section देख लो आप पहले. One moment. Okay, have a look at this section. Well, I'll start. What is this number 1? Number 1 is the corpus callosum. I'll just tell you this corpus callosum. Number 2 is the fornix. Number 3 होता है septum pellucidum. Septum pellucidum. Number 4 ये होता है anterior commissure. Anterior commissure. Number 5 ये होता है lamina terminalis. Lamina terminalis. Number 6 ये होता है optic chiasma. Optic chiasma. Number 7 यह है pituitary stalk. Number 8 यह है mammillary body. Mammillary body. Number 9, what is this? Number 9 is the pineal gland. Pineal gland. Okay. What is this entire area known as? ये जो entire area है, this is what we call as the diencephalon. Diencephalon. एंड ये डायनकेफ्लॉन में एक सल्कस होता है. यहाँ पे एक सल्कस होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमिक सल्कस. तो व्हाट इज दिस टी? थैलेमस. एंड ये क्या होगा नीचे? हाइपोथैलेमस. थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. ओके, ये कौन है बच्चों? ये है मिड ब्रेन. ये कौन है? पॉन्स. एंड ये कौन है? मेडुला. ये है सेरेबेलम. व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? ये कौन है? ये कौन है? दिस इज द फोर्थ वेंट्रिकल. दैट्स अ फोर्थ वेंट्रिकल. What is this structure? This is the aqueduct of Sylvius. Aqueduct of Sylvius, and this is the central canal of the spinal cord. Central canal of the spinal cord. I hope everything is clear to you, बच्चों. Yes, this section is clear to you. अब बोलो इसमें where is the third ventricle? Where is the third ventricle? Now just understand this. Just understand. I'm just telling you the third ventricle.
हाँ, ये दो हेमिस्फीयर्स है, देखो बच्चों, ये दो हेमिस्फीयर्स है, ये एक हेमिस्फीयर है, ये एक हेमिस्फीयर, ये जो दो हेमिस्फीयर्स है। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, ये है थैलेमस, ये कौन है, हाइपोथैलेमस। व्हाट इज दिस सल्कस इन बिटवीन, हाइपोथैलेमिक सल्कस। ये एक साइड का थैलेमस ऊपर, हाइपोथैलेमस नीचे, ये है हाइपोथैलेमिक सल्कस, दिस इज फॉर वन साइड। ये साइड का ये थैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमिक सल्कस है। अब बच्चों, when we connect these two hemispheres like this, ये ऐसे नहीं होते, नो नो नो, ये ऐसे नहीं होते, दे डोंट स्टिक टू ईच अदर, ये ऐसे एक दूसरे को चिपकते नहीं है, नो। ये जो थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं बच्चों, देखो देखो, ये ऐसे कॉन्केव होते हैं, कॉन्केविटी होती है, ऊपर थैलेमस नीचे हाइपोथैलेमस, ये सल्कस, तो ऐसे कॉन्केविटी होती है। For this side, the thalamus and hypothalamus are concave. अब जब आप ये दोनों हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे एक कैविटी बनेगी, there will be a cavity here and this is the cavity of third ventricle. ये कैविटी होती है थर्ड वेंट्रिकल, ओके। so when we connect these two hemispheres like this, ये बीच में कैविटी बनती है बच्चों, and ये कैविटी होती है थर्ड वेंट्रिकल की। So tell me, where is the how many third ventricles are there? कितने third ventricles होते हैं? एक ही third ventricle होते हैं. Okay? Yes, yes. हाँ, yes. Easy. Just wait. हाँ, I'll just finish this question answer session ही ले रहा हूँ. तो कितने third ventricles होते हैं? चलो, you answer now. Let us be interactive. कितने third ventricles होते हैं? एक third ventricle होता है. एक ही third ventricle होता है, and ये midline में होता है. Midline में. So now you tell me what is the roof of third ventricle formed by? तो अगर ये रूम है इन विच यू आर सिटिंग, अगर ये थर्ड वेंट्रिकल है तो ऊपर ये कौन है, रूफ, नीचे कौन है, फ्लोर, आगे कौन है, एंटीरियर वॉल, पीछे कौन है, पोस्टीरियर वॉल, एंड हु इज ऑन दिस साइड, लैटरल वॉल। तो बोलो बच्चों, व्हाट इज द रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल फॉर्म्ड बाय, आंसर दिस नाउ। चलो इजी, हाँ क्वेश्चन आंसर सेशन ही करते हैं, ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया आपको, हाँ दैट्स फाइन। So what is the roof of the third ventricle formed by? Any guesses? Look at this slide and tell me. What is the roof of the third ventricle formed by? It is formed by, yes, any guesses? It is formed by one, fornix. Roof of the third ventricle is formed by fornix. What is the floor of the third ventricle formed by? The floor of the third ventricle is formed by one, optic chiasma, second, pituitary stalk, third, mammillary bodies. Optic chiasma, pituitary stalk, mammillary bodies. Right? Third ventricle, बच्चा septum pellucidum नहीं आता है, कुलदीप्ति सेप्टम पेलिसिडियम नहीं आता है, रूफ में कौन होगा, फॉनिक्स। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, दिस एंटायर एरिया ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, तो रूफ में कौन है, फॉनिक्स, फ्लोर में कौन है, ऑप्टिक chiasma, पिट्यूटरी स्टॉक, मैमिलरी बॉडीज। एंटीरियर वॉल में क्या होगा, एंटीरियर कमिशर एंड लैमिना टर्मिनल। पोस्टीरियर वॉल में क्या होगा, द पीनियल ग्लैंड, द पोस्टीरियर एंड द हैबिनुलर कमिशर। अब बोलो लैटरल वॉल्स में क्या होगा, चलो बच्चों इजी बोलो, लैटरल वॉल्स में क्या होगा। लेट अस कीप दिस एज अ क्वेश्चन आंसर सेशन ओनली, हाँ नहीं तो ये पूरा टॉपिक डिस्कशन है। बोलो बच्चों, लैटरल वॉल में क्या होगा, लैटरल वॉल में होगा द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, लैटरल वॉल में होगा थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है, समझ में आ रही है। तो सिंगल थर्ड वेंट्रिकल है जिसका लैटरल वॉल इज फॉर्म बाय द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ओके, एक चीज बोलना, अगर ये सेप्टम पेलिस्ट्रियम को ब्रेक करता है अपन, देखो बच्चों देखो, अगर ये सेप्टम पेलिस्ट्रियम को ब्रेक किया आपने एंड वी गो ऑन दैट साइड लैटरल साइड, आप है ना एक बड़े से कैविटी में जाते हो, व्हाट इज दैट बिग कैविटी नोन एज, एनीवन, व्हाट इज दैट बिग कैविटी नोन एज, मतलब अगर अपन ये सेप्टम पेलिस्ट्रियम फॉनिक्स को ब्रेक करते हैं एंड अपन लैटरल साइड पे जाते हैं, तो वी गो इन अ बिग कैविटी ऑन द लैटरल साइड, व्हाट इज दैट कैविटी नोन एज, lateral ventricle, lateral ventricle. So where is the lateral ventricle, on the lateral side, and ये septum pellucidum fornix क्या बनाते हैं lateral ventricle के लिए, medial wall। तो lateral ventricle का medial wall कौन बनाता है, septum pellucidum and fornix। अब ये जो lateral ventricle है, that is going to communicate with the third ventricle through, ये arrow का नाम बोलिए, ये एरो का नाम बोलिए, ये जो लैटरल वेंट्रिकल है, हाँ सेप्टम पेलिस्ट्रियम के साइड पे, लैटरल साइड पे, हाउ इज इट गोइंग टू कम्युनिकेट विद द थर्ड वेंट्रिकल, थ्रू द लैटरल वेंट्रिकल कम्युनिकेट्स विद द थर्ड वेंट्रिकल थ्रू फोरामेन ऑफ मुनरो, ये है फोरामेन ऑफ मुनरो, ये फोरामेन ऑफ मुनरो, एंड ये जो थर्ड वेंट्रिकल है, दैट कम्युनिकेट्स विद द फोर्थ वेंट्रिकल थ्रू, व्हाट इज दिस कम्युनिकेशन नोन एज, एक्वेडक्ट ऑफ सिल्विया, एक्वेडक्ट ऑफ सिल्विया, परफेक्ट है।
ये क्लियर है? कोई डाउट्स है इसमें? चलो, तो मैंने ना थर्ड वेंट्रिकल आपको एक्सप्लेन किया थोड़ा सा शॉर्ट में, थोड़ा सा डिटेल्स में एक्सप्लेन। हाँ, ओके। चलो, गुड 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 गुड, यू नो दिस, यू नो दिस, वेरी गुड। अब ये बोलो, व्हाट इज द आर्टरी प्रेजेंट इन द लैटरल सल्कस? एनी गेसेस? Which is the artery present in the lateral sulcus of the brain? Answer this, बच्चों. Anterior wall of third ventricle is formed by anterior commissure and lamina terminalis. Kuldipti, anterior commissure and lamina terminalis. चलो बच्चों बोलो, what is the artery present in the lateral sulcus? Any guesses? मिडिल मेनिंजियल नहीं बच्चा, मिडिल मेनिंजियल नहीं. मिडिल मेनिंजियल आर्टरी किधर आती है ब्रेन में? मिडिल मेनिंजियल आर्टरी इज आउटसाइड द ब्रेन, बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन. मिडिल मेनिंजियल आर्टरी है ना, वो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमोरेज होता है, वो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमोरेज. मिडिल मेनिंजियल आर्टरी ब्रेन के अंदर नहीं आती. मिडिल मेनिंजियल आर्टरी इज आउटसाइड द ब्रेन बट इनसाइड द स्कल. अगर थ्रोम्बोसिस होता है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी का, ये जो एच शेप्ड पिक्चर होता है ना, व्हाट इज दैट? इसका नाम टेरियन, टेरियन है ना. तो अगर उधर इंजरी होता है, अगर थ्रोम्बोसिस होता है, तो दैट इज एन एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा. व्हिच इज द आर्टरी प्रेजेंट इन द लैटरल सल्कस ऑफ द ब्रेन? ये है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी. बच्चों ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपके लिए. आर्टरी प्रेजेंट इन द लैटरल सल्कस ऑफ द ब्रेन इज मिडिल सेरेब्रल आर्टरी. एंड ये जो आर्टरी होती है ना, कॉर्पस कैलोसम के ऊपर एक सल्कस होता है. बोलिए, व्हाट इज द सल्कस अबाउट द कॉर्पस कैलोसम? इसका नाम बताइए. चलो बच्चों, सल्कस अबाउट द कॉर्पस कैलोसम. Name, come on. Okay, सृष्टि, वेरी गुड. सॉरी, मैंने देखा नहीं सृष्टि. आर्टरी प्रेजेंट अबाउट द कॉर्पस कैलोसम. कॉर्पस कैलोसम के ऊपर एक सल्कस होती है, नाम callosal sulcus. Okay, very good Kuldipti, that is callosal sulcus. And which is the artery present in the callosal sulcus? बच्चों ये होती है anterior cerebral artery. बस ये याद रखना, callosal sulcus. गुनीन, callosal sulcus के ऊपर होती है ये cingulate sulcus. जो आप बोल रहे हो ना, ये cingulate sulcus है ना, ये callosal sulcus के ऊपर होती है. हाँ, तो artery present in the callosal sulcus is anterior cerebral artery. बच्चों अब देखना, ये है बहुत इंपॉर्टेंट है ये. One moment, I'll just clear this. Now this entire medial surface, बच्चों ये entire medial surface को कौन सप्लाई करेगा? anterior cerebral artery. entire medial surface को anterior cerebral artery सप्लाई करेगा. ये anterior cerebral artery वो साइड पे जाएगा, वो साइड मतलब कौन से सरफेस को? सुप्रोलैटरल सरफेस के एक छोटा सा एरिया को कौन सप्लाई करेगा? anterior cerebral artery. The entire supralateral surface is supplied by which artery? The entire supralateral surface is supplied by middle cerebral artery. Middle cerebral artery. The entire supralateral surface is supplied by middle cerebral artery. एक छोटा सा एरिया यहाँ पे is supplied by middle cerebral artery. And the occipital lobe is supplied by whom? Posterior cerebral. Occipital lobe is supplied by posterior cerebral artery. ये क्लियर है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है. So can anyone tell me the blood supply of motor area? Blood supply of motor area. बोलिए, blood supply of motor area. Any guesses? Blood supply of motor area. हाँ अथर्वा, सोच के बताओ अथर्वा, सोच के बोलो बच्चा. Yes. Any guesses, students? Come on बच्चों, come on. Blood supply of motor area, middle cerebral नहीं, anterior and middle cerebral artery. मिदोरिया, very good मिदोरिया. देखो ना, ये कौन है? ये है सेंट्रल सल्कस, बराबर. ये सेंट्रल सल्कस, ये प्री सेंट्रल होती है, ये पोस्ट सेंट्रल होती है, राइट. तो विच इज द मोटर एरिया? ये अपना मोटर एरिया है ना. तो मोटर एरिया का दिस पार्ट, इसे कौन सप्लाई करेगा? मिडिल सेरेब्रल आर्टरी. एंड मोटर एरिया का ये पार्ट को कौन सप्लाई करेगा? एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी.
तो ब्लड सप्लाई ऑफ मोटर एरिया और सेंसरी एरिया, दो आर्टरीज होती है, एंटीरियर सेरेब्रल एंड द मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, ये याद रखना, anterior cerebral plus middle cerebral artery. Huh? Clear to all of you? And blood supply of um, visual cortex. Blood supply of visual cortex. बोलिए बच्चों. और occipital lobe. Any guesses? Blood supply of visual cortex और occipital lobe. Answer this posterior cerebral. अब उस इतना इजी होता तो I would not have asked you. है ना, इतना इजी नहीं है बच्चों. इतना सिंपल एमसीक्यू नहीं है वो. So blood supply of the occipital lobe or visual cortex is yes posterior cerebral, agreed, posterior cerebral is fine, but वो visual cortex में एक specific area होता है for fine vision. I mean इसका नाम क्या होता है पता है वो? Macula. 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 Visual cortex में एक एरिया होता है जिसका नाम है मैक्यूला, एंड दिस मैक्यूला इज सप्लाइड बाय whom? मैक्यूला इज सप्लाइड बाय मिडिल सेरेब्रल आर्टरी. मिडिल सेरेब्रल आर्टरी. So blood supply of visual cortex is posterior cerebral plus middle cerebral artery. Posterior cerebral plus middle cerebral, and that is why जब वो posterior cerebral artery का thrombosis होता है, there is macular sparing. Yes, blindness with macular sparing. Very good, Varun. वेरी गुड. समझ में आ रहा है? यस, वेरी नाइस. तो अगर ब्लड सप्लाई ऑफ ऑक्सीपिटल लोब पूछना है या फिर ब्लड सप्लाई ऑफ विजुअल कॉर्टेक्स पूछना है ना बच्चों, तो दोनों आर्टरीज लिखना है आपको पोस्टीरियर सेरेब्रल पे लिखना है एंड मिडिल सेरेब्रल पे लिखना है, बिकॉज ये जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है ना वो मैक्यूला को सप्लाई. ठीक है, परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड. चलो, गुड गुड गुड. व्हाट डू वी कम टू? बोलिए, क्या बोलूं अभी आपको? ये बोलो, लैटरल वेंट्रिकल बोलो. लैटरल वेंट्रिकल डिस्कस करते हैं या लैटरल वेंट्रिकल आपको पता है? बोलिए, यू टेल मी. हाँ, बोलो बच्चों, लैटरल वेंट्रिकल डिस्कस करते हैं. फिर डिस्कस लैटरल वेंट्रिकल. थोड़ा सा डिफिकल्ट है लैटरल वेंट्रिकल. हाँ, सल्काइन गायरे इजी है ना अथर्व? सल्काइन गायरे इजी है. ओके, पहले लैटरल वेंट्रिकल देख लो, फिर फोर्थ वेंट्रिकल देखते हैं. हाँ, लैटरल वेंट्रिकल देख लो पहले, फिर फोर्थ वेंट्रिकल देखते हैं. चलो, वेट 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 सृष्टि. ओके, सो दो लैटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, वन इन दिस हेमिस्फीयर, वन इन दिस हेमिस्फीयर. चलो चलो स्टूडेंट्स, एक फटाफट लैटरल वेंट्रिकल खत्म करते हैं. दो लैटरल वेंट्रिकल है, वन इन दिस हेमिस्फीयर, वन इन दिस हेमिस्फीयर. वैसे थर्ड वेंट्रिकल एक ही था, सिंगल थर्ड वेंट्रिकल था. अब ये दोनों लैटरल वेंट्रिकल होते हैं ना, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर. ये दोनों लैटरल वेंट्रिकल हैं, बस वो एक पॉइंट पे कनेक्टेड होते हैं, एंड दिस टू लैटरल वेंट्रिकल्स आर कम्युनिकेटिंग विद अ सिंगल मिडलाइन थर्ड वेंट्रिकल. मतलब दो लैटरल वेंट्रिकल है, दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, एंड ये कम्युनिकेट किसे करते हैं, किसके साथ करते हैं? थर्ड वेंट्रिकल. अब ये फोरामेन का नाम क्या है? फोरामेन ऑफ मुंड्रो. ये एक लैटरल वेंट्रिकल है, ये दूसरा लैटरल वेंट्रिकल. समझ में आ रहा है? तो ये जो दो लैटरल वेंट्रिकल होते हैं, ये आगे की तरफ कनेक्टेड होते हैं, एंड बोथ दिस लैटरल वेंट्रिकल. अरे वो सबसे इजी डायग्राम था थर्ड वेंट्रिकल का जो मैंने ड्रॉ किया, आनंदू. Okay, so two lateral ventricles are connected to each other anteriorly, and they communicate with the third ventricle through foramen of Monro. And ये जो third ventricle है, ये communicate करता है fourth ventricle. ये fourth ventricle है through what is this area? Aqueduct of Sylvius. Aqueduct of Sylvius. ठीक है? Okay, now coming to the lat. ये देखिए, what is this view? ये कहाँ से देख रहे हो? नंबर वन, रोमन नंबर वन. ये व्यू कहाँ से देख रहे हो बच्चों? Any guesses? ये ये कहाँ से देख रहे हो? आनंदो, जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया वो बहुत इजी था बच्चों, बहुत इजी. हाँ, ये सुपीरियर सुपीरियर व्यू. हाँ, लाइक आप ऊपर से नीचे देख रहे हो, मतलब यू आर फ्लाइंग एंड यू लुकिंग डाउन. हाँ, तो है ना, यू गॉट अ सीटी स्कैन आईज, यू डायरेक्टली लुक इनसाइड. तो ये ऐसे लैटरल वेंट्रिकल ऊपर से देख रहे हो. सो दिस इज वन लैटरल वेंट्रिकल, ये दूसरा लैटरल वेंट्रिकल है. एंड व्हाट इज दिस बच्चा? ये है अपना थर्ड वेंट्रिकल. देखो बीच में थर्ड वेंट्रिकल है. एंड व्हाट इज दिस? ये है फोर्थ वेंट्रिकल, राइट? तो ये कम्युनिकेशन कौन है? व्हाट इज दिस कम्युनिकेशन? ये है फोरामेन ऑफ मंड्रो. एंड व्हाट इज दिस? एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस. एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस. परफेक्ट है, परफेक्ट.
परफेक्ट, वेरी गुड। तो है ना, लेट मी ड्रॉ दिस फॉर यू। ठीक है ना, ये ड्रॉ करते हैं, चलो। नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद द लैटरल वेंट्रिकल, टेल मी व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ कॉर्पस कैलोसम? एनीवन? कॉर्पस कैलोसम के पार्ट्स बोल सकते हो? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। एनी गेसेस? कॉर्पस कैलोसम पे शॉर्ट नोट आता है, तो शॉर्ट नोट आया तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, कॉर्पस कैलोसम के पार्ट्स लिखने हैं, वो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइबर्स लिखना है, फिर आर्टरी प्रेजेंट अबाउट द कॉर्पस कैलोसम, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी लिखना है, एंड द फाइबर्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम द कॉर्पस कैलोसम। आगे फाइबर्स होते हैं फ्रंटल लोब में जाते हैं, पीछे फाइबर्स होते हैं ऑक्सीपिटल लोब में जाते हैं, एंड साइड्स से फाइबर्स जो होते हैं वो पैराइटल लोब्स में जाते हैं, पैराइटल एंड टेम्पोरल लोब्स में जाते हैं। व्हाट आर दोस फाइबर्स नोन एज? एनी गेसेस? ये जो फाइबर्स आगे जाते हैं इसका नाम क्या बोलिए बच्चों? ये पीछे जाते हैं इनका नाम क्या है? एंड ये साइड्स पे जाते हैं इनका नाम क्या है? हाँ, आंसर दिस कुलदीप्ति। व्हाट आर दीज फाइबर्स व्हिच आर गोइंग इन द फ्रंटल लोब? आगे जाते हैं, इनका नाम क्या है? नहीं, स्पेनियम नहीं, इनका नाम फोर्सेप्स माइनर। ओके, ये है फोर्सेप्स माइनर। एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन ये नहीं है, ये पीछे जो जाते हैं वो फोर्सेप्स मेजर। हाँ, फोर्सेप्स मेजर, फोर्सेप्स माइनर, एंड ये कौन है? टैपेटम। टैपेटम, फोर्सेप्स माइनर, फोर्सेप्स मेजर, एंड जो साइड्स पे जाते हैं उनका नाम है टैपेटम फाइबर्स, टैपेटल फाइबर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस, बट व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ कॉर्पस कैलोसम? अगर ये पार्ट्स ऑफ कॉर्पस कैलोसम आता है ना तो बहुत इजी होता है लैटरल वेंट्रिकल। नंबर 1 कौन है? रोस्ट्रम। देखो रोस्ट्रम, ये कौन है? जेन्यू। ये कौन है? 3 ट्रंक, एंड ये कौन है पीछे? स्प्लीन। रोस्ट्रम, जेन्यू, ट्रंक एंड स्प्लीन। ठीक है, ये क्या था? एंटीरियर कमीशर। ये कौन है? फॉनिक्स। एंड व्हाट इज दिस? सेप्टम पेल्यूसिडम। मैंने एक चीज बोला आपको, अगर आप सेप्टम पेल्यूसिडम को ब्रेक करते हो एंड अगर आप लैटरली जाते हो तो वेयर डू वी गो? इनटू लैटरल वेंट्रिकल, है ना? अपन लैटरल वेंट्रिकल में जाते हैं। तो व्हाट इज द सेप्टम पेल्यूसिडम एंड फॉनिक्स फॉर्म फॉर द लैटरल वेंट्रिकल? स्टूडेंट्स, ये सेप्टम पेल्यूसिडम एंड फॉनिक्स ये क्या बनाते हैं लैटरल वेंट्रिकल के लिए? द मीडियल वॉल। दे फॉर्म द मीडियल वॉल ऑफ द लैटरल। ये क्लियर है? लैटरल वेंट्रिकल इज ऑन दैट साइड, तो ये मीडियल वॉल बना। चलो, आई एम स्टार्टिंग विद लैटरल वेंट्रिकल बच्चों, जस्ट हैव अ लुक एट दिस, वेरी गुड। तो ये है एक लैटरल वेंट्रिकल। मैं एक लैटरल वेंट्रिकल ड्रॉ कर रहा हूँ आपको, आपके लिए। दिस इज वन लैटरल वेंट्रिकल। दूसरा लैटरल वेंट्रिकल वहां पे होगा, आई एम नॉट ड्रॉइंग दैट। व्हाट इज दिस? दैट्स द फोरामेन ऑफ मुंड्रो, फोरामेन ऑफ मुंड्रो। ये एक लैटरल वेंट्रिकल है, वो दूसरा वहां पे होगा लैटरल वेंट्रिकल, ये है फोरामेन ऑफ मुंड्रो। अब व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ लैटरल वेंट्रिकल? एनीवन टेल मी व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ लैटरल वेंट्रिकल? मतलब फोरामेन ऑफ मुंड्रो के आगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। चलो बोलिए बच्चों, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ लैटरल वेंट्रिकल? 1 कौन है? 1 होता है एंटीरियर हॉर्न, एंटीरियर हॉर्न। 2 होता है बॉडी ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल। 3 होता है पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल, एंड 4th इज इंफीरियर हॉर्न ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल। ठीक है, एंटीरियर हॉर्न बॉडी, पोस्टीरियर हॉर्न एंड इंफीरियर हॉर्न ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको पता है, कॉर्पस कैलोसम की पार्ट्स पता है, अब दोनों को भी ज्वाइन कर। हाँ चलो, विल स्टार्ट। व्हाट आर द रिलेशंस ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल? चलो स्टूडेंट्स, इजी, अब बोलो रिलेशंस ऑफ द एंटीरियर हॉर्न। स्टार्टिंग हियर, देखो देखो देखो, ऐसे डायग्राम्स आपको ड्रॉ करना है बच्चों, एंड डायरेक्टली विद कलर्ड पेन्स यू हैव टू ड्रॉ। तो एंटीरियर हॉर्न ऑफ लैटरल वेंट्रिकल, फ्लोर। आंसर नाउ, फ्लोर में कौन है? व्हाट इज दिस पार्ट ऑफ कॉर्पस कैलोसम? कम ऑन बच्चों, कम ऑन। एंटीरियर हॉर्न के फ्लोर में कौन है? लैटरल वेंट्रिकल का ये है एंटीरियर हॉर्न, फ्लोर में कौन है? ये हु इज इन द फ्लोर? एनी गेसेस? हु इज इन द फ्लोर? रोस्ट्रम, वेरी गुड गुनिन, रोस्ट्रम। हु इज एंटीरियरली? अपन क्या पढ़ रहे हैं अब? लैटरल वेंट्रिकल। लैटरल वेंट्रिकल का एंटीरियर हॉर्न, उसके रिलेशंस आप पढ़ रहे हो, रिलेशंस। तो फ्लोर में कौन है? रोस्ट्रम। आगे कौन है? जेन्यू। सर एंटीरियरली कौन है? जेन्यू। एंड रूफ में कौन होगा बच्चों? रूफ में होगा ट्रंक ऑफ कॉर्पस कैलोसम, करेक्ट। रूफ में होता है ट्रंक ऑफ कॉर्पस कैलोसम। एंड हुज मीडियल, देखो देखो, हुज मीडियल? सेप्टम पेल्विस्टम एंड द फॉनिक्स, है ना? तो मीडियली कौन आ गया? सेप्टम पेल्विस्टम फॉनिक्स। इजी है बच्चों, इजी है। सो एंटीरियर हॉर्न के रिलेशंस कौन है? फ्लोर, रोस्ट्रम, एंटीरियरली जेन्यू, रूफ में होगा ट्रंक ऑफ कॉर्पस कैलोसम, मीडियली होगा सेप्टम पेल्विस्टम एंड द फॉनिक्स।
परफेक्ट। अब आते हैं बॉडी के रिलेशंस। व्हाट आर द रिलेशंस ऑफ द बॉडी ऑफ द लैटरल? रूफ में कौन है? अगेन अगेन ट्रंक ऑफ कॉर्पस कैलोस। रूफ में है ट्रंक ऑफ कॉर्पस कैलोस। मीडियली कौन होता है? मीडियली इज द सेप्टम पेलिस्टम एंड द फॉर्निक्स। मीडियली होता है सेप्टम पेलिस्टम एंड द फॉर्निक्स। अब फ्लोर में देखिए, फ्लोर में दो न्यूक्लियस होते हैं। एनी गेसेस ये कौन है? ये न्यूक्लियस ऐसे सी शेप न्यूक्लियस होता है जिसका टेल भी होता है। टेल, एनीवन? व्हाट इज दिस सी शेप न्यूक्लियस जिसका टेल होता है? कॉर्डेट न्यूक्लियस, वेरी गुड। सो फ्लोर ऑफ द बॉडी ऑफ लैटरल वेंट्रिकल में क्या होगा? कॉर्डेट न्यूक्लियस। और एक न्यूक्लियस होता है, ये कौन है? थैलेमस। थैलेमस, थैलेमस। सो फ्लोर ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल पे दो न्यूक्लियस होता है। फ्लोर ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल में, फ्लोर ऑफ द बॉडी ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल में दो न्यूक्लियस होते हैं। एक होता है कॉर्डेट न्यूक्लियस, दूसरा होता है थैलेमस। अब कैसे होगा? वेयर इज थैलेमस? थैलेमस इज मीडियल। थैलेमस इज medial and caudate nucleus is lateral. क्लियर है? सो medially होता है थैलेमस, medially थैलेमस होता है, एंड laterally कौन होता है? caudate nucleus. Am I clear to all of you? तो अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? रिलेशंस ऑफ द बॉडी ऑफ लैटरल वेंट्रिकल। रूफ में कौन है? द ट्रंक ऑफ कॉर्पस कैलोसम। मीडियली कौन है? सेप्टम पेलिस्टम एंड द फॉर्निक्स। एंड फ्लोर में कौन होगा? दो न्यूक्लियस होते हैं। मीडियली होता है थैलेमस एंड लैटरली होता है कॉर्डेट न्यूक्लियस। परफेक्ट, ओके। अब कमिंग टू द पोस्टीरियर हॉर्न, स्टूडेंट्स, पोस्टीरियर हॉर्न। अब posterior horn lies in which lobe? देखो posterior horn is coming in which lobe? ये कौन सा लोब है? posterior horn कौन से लोब में आता है? occipital लोब के अंदर होता है ये posterior horn। एंड occipital लोब में ये sulcus होता है। what is the name of this sulcus? any guesses? ये sulcus का नाम क्या है? anyone? anyone? what is the name of the sulcus? हाँ, what is the name of the sulcus? या ऑक्सीपिटल लोब में होता है। यूनिट नहीं है, यूनिट नहीं है इतोरिया, यूनिट नहीं है, ये है कैल्कराइंस। वेरी गुड, इसका नाम है कैल्कराइन सल्कस। ये जो कैल्कराइन सल्कस है ना बच्चों, ये ना इन पोस्टीरियर हॉर्न में ऐसे 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 प्रोजेक्ट करता है। तो यहाँ पे पोस्टीरियर हॉर्न में ये एलिवेशन बनाता है, एंड ये एलिवेशन का नाम क्या है? कैल्कार एबिस। कैल्कार एबिस। तो ये पोस्टीरियर हॉर्न में एक एलिवेशन बनेगा फ्लोर के अंदर, एंड ये एलिवेशन का नाम होगा कैल्कार एबिस। कैल्कार एबिस समझ में आ रही है? कैल्कार एबिस क्या है? तो ये पोस्टीरियर हॉर्न कौन से लोब के अंदर होता है? ऑक्सीपिटल लोब के अंदर होता है। एंड ये पोस्टीरियर हॉर्न में एक सल्कस होता है जिसका नाम है कैल्कराइन सल्कस। यस, प्योर फ्रॉम, हाँ, स्मरण्य, ठीक है। And what is this horn? This is the inferior horn of the lateral ventricle. ये क्या लोब होगा? टेम्पोरल लोब। एंड टेम्पोरल लोब में एक सल्कस होता है, इसका नाम क्या है? कोलैटरल, कोलैटरल सल्कस। एंड ये कोलैटरल सल्कस जो है, इट विल फॉर्म एन एलिवेशन हियर। कोलैटरल सल्कस विल फॉर्म एन एलिवेशन हियर, इसका नाम होगा, व्हाट इज दिस एलिवेशन इन द इंफीरियर हॉर्न नोन एज? एनी गेसेस? इसका नाम है कोलैटरल। समझ में आई है कोलैटरल एमिनेंस क्या होता है? तो ये कोलैटरल एमिनेंस एक एलिवेशन होता है। ये कौन से हॉर्न में होगा? इंफीरियर हॉर्न ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल में होगा। एंड दिस इंफीरियर हॉर्न लाइज इन व्हिच लोब बच्चों? टेम्पोरल लोब। एम आई क्लियर? यस, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ऐसे जो सल्कस होते हैं ना, जो एलिवेशन बनाते हैं, व्हाट आर द सल्कस नोन एज? such sulci which forms an elevation in the lateral ventricles are known as what? Complete sulcus. Complete sulcus. Complete sulcus.
इसको हम बोलेंगे कंप्लीट सल्कस. सो व्हाट इज अ कंप्लीट सल्कस बच्चों? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. सो एक कंप्लीट सल्कस वो होता है जो लैटरल वेंट्रिकल के फ्लोर में ऐसे एलिवेशन बनाएगा, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ कंप्लीट सल्कस. तो अपने पास दो कंप्लीट सल्कस होते हैं बच्चों. एक होती है कैल्कराइन सल्कस एंड दूसरा होता है कोलैटरल सल्कस. तो ये जो कैल्कराइन सल्कस होता है, ये जो एलिवेशन बनाता है, उसका नाम क्या है? कैल्कार एविस. एंड जो कोलैटरल सर्कस है जो एलिवेशन बनाएगा, उसका नाम क्या होगा? कोलैटरल एमिनेंस. माय क्लियर? वेरी गुड कुलदीप्ति. वेरी गुड, यू अंडरस्टूड नो? यस, ऑल ऑफ यू क्लियर? ऑल ऑफ यू. तो दिस इज अ कंप्लीट सर्कस. एक दूसरा सर्कस होता है लिमिटिंग सर्कस. लिमिटिंग सर्कस क्या होता है? एनी गेसेस? लिमिटिंग सर्कस कौन है? जो जो सेपरेट करता है, दो एरियाज को सेपरेट करता है. बोलो एग्जांपल. लिमिटिंग सर्कस वो होता है जो दो एरियाज को सेपरेट करेगा. एग्जांपल ऑफ अ लिमिटिंग सर्कस इज सेंट्रल सर्कस. वेरी गुड, वेरी गुड. सेंट्रल सर्कस. सेंट्रल सर्कस दो एरियाज को सेपरेट करता है ना, मोटर एंड सेंसरी एरिया को सेपरेट. एक होता है एक्शियल सर्कस. एक्शियल सर्कस क्या होता है? जो एक्सिस ऑफ द लोब में ग्रो करता है. इट ग्रोज इन द सेंटर ऑफ द लोब. एग्जांपल इज कैल्कराइन सर्कस. Calcarine sulcus. Calcarine sulcus grows in the center of which lobe? Occipital lobe. Occipital lobe के center में grow होता है ये. इसको हम बोलेंगे axial sulcus. Perfect. Okay, okay बच्चों. Okay. Very good, very good. चलो. Very nice. You understood this. एक मिनट. Let me show you this. See this. Can anyone tell me what is this? This is the lateral ventricle. Lateral ventricle. तो लैटरल वेंट्रिकल का रूफ में कौन है? रूफ में यह है कॉर्पस कैलोसम. कॉर्पस कैलोसम ये बॉडी ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल है. तो रूफ में क्या होगा? कॉर्पस कैलोसम. एक्शियल सर्कस इज आल्सो नोन एज सिंगुलेट सर्कस. नहीं, उसका एग्जांपल ले सकते हो. उसका एग्जांपल ले सकते हो. हाँ मिदोरिया. रुको रुको रुको. ये लैटरल वेंट्रिकल है. एंड फ्लोर ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल में ये कौन है? देखो बच्चों, फ्लोर ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल में ये न्यूक्लियस कौन है? कॉर्डिक न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस थैलेमस. And medially ये कौन है? Who's this? This is the septum pellucidum. Ponic. समझ में आ रहा है? देखो बच्चों, ये जो कैविटी है ना, ये जो कैविटी आप देख रहे हो, दिस कैविटी इज द कैविटी ऑफ लैटरल वेंट्रिकल. एक साइड का लैटरल वेंट्रिकल. बॉडी ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल. तो रूफ इज फॉर्म बाय whom? रूफ इज फॉर्म बाय द कॉर्पस कैलोसम. बॉडी का रूफ कौन बनाता है? कॉर्पस कैलोसम. मीडियली कौन है? सेप्टम पेलिस्टम एंड कॉर्निक्स. एंड फ्लोर में कौन होता है? फ्लोर में कॉर्डिक न्यूक्लियस लैटरली होता है एंड थैलेमस मीडियली होता है. थैलेमस इज ऑन द मीडियल साइड. ये एक थैलेमस है, ये एक थैलेमस है. तो ये बीच क्या कैविटी होती है? दो थैलेमस के बीच में क्या कैविटी होता है बच्चों? दो थैलेमस के बीच में जो कैविटी होती है, व्हाट इज दैट कैविटी? एनी गेसेस? ये देखो, ये मैं मार्क कर रहा हूँ. ये कैविटी का नाम बताइए. बोलो. थर्ड वेंट्रिकल. वेरी गुड, वेरी गुड आता. वेरी गुड. वो है थर्ड वेंट्रिकल. समझ में आया सबको? हाँ. आर यू एबल टू फॉलो लैटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल? कोरिलेट कर सकते हो ना? अब बस ये एक बार कोरिलेशन आता है ना, न्यूरोएनाटॉमी बिकम्स वेरी इजी. तो थर्ड वेंट्रिकल इज बिटवीन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. और लैटरल वेंट्रिकल, दो लैटरल वेंट्रिकल को सेपरेट कौन करता है? सेप्टम पेलिस्टम एंड फॉर्निक्स. रूफ कौन बनाता है? कॉर्पस कैलोसम. एंड फ्लोर में क्या होता है? कॉर्डिक न्यूक्लियस एंड थैलेमस. कॉर्डिक न्यूक्लियस एंड थैलेमस. एक स्लाइड देख लो. आई जस्ट शो यू वन स्लाइड. ये देखिए, ये स्लाइड देख लो. दिस इज अ ब्यूटीफुल स्लाइड. ये कौन है बोलिए? दिस इज लैटरल वेंट्रिकल. ये लैटरल वेंट्रिकल है. तो ये कौन है? ये है रूफ. रूफ कौन बनाता है? कॉर्पस कैलोसम. मीडियली ये क्या होगा? ये क्या है? सेप्टम पेलिस्टम एंड द फॉर्निक्स. मीडियली होता है सेप्टम पेलिस्टम एंड फॉर्निक्स. वेरी गुड अविनाश. हाँ, यू विल बी एबल टू फॉलो दिस. सेप्टम पेलिस्टम एंड फॉर्निक्स. एंड फ्लोर ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल में ये कौन है? कॉर्डिक न्यूक्लियस. ये कौन है? थैलेमस. थैलेमस थैलेमस थैलेमस. तो ये क्या कैविटी होगा? थर्ड. परफेक्ट. अविनाश अंडरस्टैंडिंग?
परफेक्ट। बस ये है ना, ये सेक्शंस आपको समझना चाहिए। ये क्या सेक्शन है? कोरोनल सेक्शन है। पहले जो मैंने ड्रॉ किया था वो था सजाइटल सेक्शन, ये कोरोनल सेक्शन है। कोरोनल सेक्शन भी वाइवास में पूछते हैं आपको, वाइवास में पूछे। हाँ, यस वरुण, important topics I'm discussing, important topics. चलो ओके, दैट्स फाइन। नाउ वी कम टू दिस फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल एक बार देख लो, फोर्थ वेंट्रिकल देख लीजिए। चलो बच्चों, जस्ट क्विकली टेल मी, ये कहाँ से देख रहे हो? व्हाट इज दिस व्यू? व्हाट इज दिस व्यू? कहाँ से देख रहे हो? यस अविनाश, यू कैन स्टडी। यस कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आंसर। ये कहाँ से देख रहे हो? क्या व्यू है ये? एंटीरियर है कि पोस्टीरियर है? एंटीरियर व्यू है कि पोस्टीरियर व्यू? हाँ, दिस इज द पोस्टीरियर व्यू। तो व्हाट हैव वी ओपनड? आपने क्या निकाला है? सेरेबेलम। आपने सेरेबेलम को निकाल दिया। तो ये जो कैविटी है ना बच्चा, ये जो कैविटी है, ये कैविटी होती है फोर्थ वेंट्रिकल की। ये जो खाली स्पेस होगा वो फोर्थ वेंट्रिकल का स्पेस है। एंड व्हाट इज दिस गोइंग टू फॉर्म फॉर द फोर्थ वेंट्रिकल? ये बनेगा फ्लोर ऑफ द फोर्थ, फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। तो फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल देखिए, ये जो स्पेस आप देख रहे हो, दिस इज द फोर्थ वेंट्रिकल। ये है फोर्थ वेंट्रिकल। ये जो कैविटी आप देख रहे हो, ये है कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। तो फ्लोर कौन बनाएगा? फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल इज फॉर्म्ड बाय द pons एंड द मेडुला। pons एंड मेडुला क्या बनाएगा? फ्लोर। एंड रूफ कौन बनाएगा? सेरेबेलम। यस, so floor of the fourth ventricle is formed by the pons and the medulla, and the roof is formed by cerebellum. Midbrain का अपना कैविटी होता है बच्चों। व्हाट इज द कैविटी ऑफ मिडब्रेन नोन एज? मिडब्रेन का क्या कैविटी होता है? एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस। मिडब्रेन का अपना कैविटी होता है एक्वेडक्ट ऑफ। So fourth ventricle is present between the pons and the medulla and the cerebellum. Clear है ये? तो फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल कौन बनाता है? pons and medulla, एंड रूफ कौन बनाता है? सेरेबेलम। सेरेबेलम। अब ये फ्लोर को दो हाफ में डिवाइड करता है। देखिए, फ्लोर को दो हाफ में डिवाइड किया, ये कौन बनाएगा? pons, एंड ये कौन बनाएगा? फ्लोर को दो हाफ में डिवाइड किया, अपर पार्ट इज फॉर्म बाय द pons एंड द लोअर पार्ट इज फॉर्म बाय द medulla. Okay, now students, one moment, can you tell me, look, this is beautiful, huh? ये बहुत अच्छा स्लाइड है, if you can just understand this. बट इसमें ना देयर आर सर्टेन थिंग्स जो ड्रॉ नहीं किया है। ये मैंने क्या ड्रॉ किया बच्चों? ये मैंने क्या ड्रॉ किया? मैं सारे वेंट्रिकल्स आप देख सकते हो, देखो अप्रिशिएट करिए। ये मैंने क्या ड्रॉ किया? एनी गेसेस? ये मैंने क्या ड्रॉ किया? मिडोरिया? ये क्या है? टीलिया कोरॉइड नहीं है। ये कौन है? और ये कौन है? अब बोलो, अब क्लियर होगा। अभी बोलो बच्चों। कॉर्पस कैलोसम, वेरी गुड, वेरी नाइस। ये कॉर्पस कैलोसम है। ये मैंने कॉर्पस कैलोसम ड्रॉ किया। ये लाइन कौन है? ये लाइन कौन है? बोलो ना बच्चों, बोलो। ये लाइन है सेप्टम पेलुसिडम। ये मैंने सेप्टम पेलुसिडम ड्रॉ किया। तो फिर ये कौन है? ये है फॉनिक्स। फॉनिक्स उसने ड्रॉ नहीं किया है, मैंने वो लगाया, मैंने वो ड्रॉ किया आपके लिए। हाँ, तो ये कौन है? कॉर्पस कैलोसम। बस ये कंसेप्ट समझ लो बच्चों। ये माई जॉब इज जस्ट टू क्लियर योर कंसेप्ट। एक बार कंसेप्ट क्लियर होता है ना, आप अपने आप समझ जाओगे सब। तो ये देखो, ये कौन है? कॉर्पस कैलोसम। ये कौन है? सेप्टम पेलुसिडम। ये कौन है? फॉनिक्स। अब बताओ बच्चों, ये कैविटी क्या होगा? ये कैविटी कौन है? ये कैविटी क्या होगा? बोलो 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 बोलो। लैटरल वेंट्रिकल, वेरी गुड आता। ये लैटरल वेंट्रिकल है ना? ये लैटरल वेंट्रिकल है ना, जिसका रूफ कौन बनाता है? कॉर्पस कैलोसम। जिसका मीडियल वॉल कौन बनाएगा? सेप्टम पेलुसिडम फॉनिक्स। एंड जिसका फ्लोर कौन बनाएगा? ये नंबर 1 मैंने लगाया, ये नंबर 2 मैंने लगाया। अब 1 कौन है बोलिए? हुज नंबर 1? हुज नंबर 1? नंबर 1 एंड हुज नंबर 2? देखो देखो बच्चों, आंसर करिए। Number 1, you guess करिए ना, you can guess that. Number 1 is the caudate nucleus. Very good, very good. Gunan, number 1 is the caudate nucleus. Number 2 कौन है? नंबर 2 कौन है? नहीं, अरे अभी अपन ने डिस्कस किया ना, लैटरल वेंट्रिकल के फ्लोर में कौन है? लैटरल वेंट्रिकल के फ्लोर में कौन है? एक होता है caudate nucleus, नंबर 2 इज द थैलेमस। 2 है थैलेमस, देखो ना, इजी है। ये एक है caudate nucleus, नंबर 2 है थैलेमस। अब समझ में आ रहा है?
तो फ्लोर में मैंने अभी बोला आपको, फ्लोर ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल में दो न्यूक्लियस होते हैं। तो लैटरली कौन है? कॉर्डिक न्यूक्लियस। एंड मेजरली कौन है? थैलेमस। ये एक थैलेमस, ये दूसरा थैलेमस। थैलेमस 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 थैलेमस। ये क्या कैविटी, ये क्या कैविटी है? बोलो बच्चों, ये क्या कैविटी है? हम्म, थर्ड वेंट्रिकल। समझ में आ रहा है? ये थर्ड वेंट्रिकल। अब है ना, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अब है ना मैं इसके अंदर से जा रहा हूँ, इसके अंदर से आई एम पासिंग थ्रू, इसके अंदर से मैं जा रहा हूँ, इसके अंदर से, एंड आई कम इन अनदर कैविटी। ये क्या कैविटी है बच्चों? ये क्या कैविटी है? ये है कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। समझ में आई है? हाँ, तो ये कौन है? ये है एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस। एक्वेडक्ट अंदर से है, अंदर से एक्वेडक्ट है, वो मैं बना नहीं सकता आपके लिए। तो अंदर से आओगे तो एक्वेडक्ट से आप आओगे, एंड आप आ गए फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर। एंड फोर्थ वेंट्रिकल से नीचे अपन गए, फोर्थ वेंट्रिकल से नीचे अपन गए तो अपन कहाँ गए? सेंट्रल कैनाल ऑफ द मेडुला एंड देन स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल कैनाल ऑफ मेडुला एंड देन स्पाइनल। समझ में आएगी बच्चों? समझ में आया? ये कोरिलेशन समझ में आ रहा है ना? ये मैंने सारे वेंट्रिकल्स बता दिए, देखो आपको, है ना? सारे वेंट्रिकल्स बता दिए, राइट? ये कौन है बोल सकते हो? नंबर वन। हुज नंबर वन? हम्म, हुज नंबर वन? मैचेंटियन लूज का फोर, हाँ, फोर्थ वेंट्रिकल में होगा। अविनाश, ये पीनियल ग्लैंड है, ये पीनियल ग्लैंड है। हुज दिस नंबर टू एंड हुज दिस नंबर थ्री? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हुज दिस नंबर टू एंड नंबर थ्री? सुपीरियर कॉलिकुलस, वेरी गुड। सुपीरियर कॉलिकुलस एंड इंफीरियर कॉलिकुलस। मीडियल नहीं होता है, सुपीरियर एंड इंफीरियर कॉलिकुलस होता है। ओके, चलो बच्चों, वेरी गुड, आपको सब समझ में आया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी अपन फोर्थ वेंट्रिकल डिस्कस करते हैं। फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल को दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया। हाँ, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, वेरी गुड। तो फोर्थ फ्लोर, फोर्थ वेंट्रिकल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ये पार्ट कौन बनाएगा? पॉन्स। एंड ये पार्ट कौन बनाएगा? मेडुला। मेडुला। अब देखो बच्चों, पॉन्स के अंदर वी फाइंड टू राउंडेड बॉडीज। तो ये जो राउंडेड बॉडीज देख रहे हो आप, इनका नाम क्या होता है? व्हाट इज दिस नोन एज? Wait, easy, we'll discuss this later. What are these two rounded structures known as? This is known as the facial colliculus. Very good, बच्चा, very good. This is what we call as facial colliculus. अब ये facial colliculus कैसे बनते हैं, ये देखने के लिए अपन यहाँ पे एक सेक्शन लेते हैं, है ना? ये facial colliculus कैसे बनते हैं? To see this, we are taking a section here. अब बोलो बच्चों, ये देखिए, ये एक सेक्शन लिया, ये सेक्शन लिया अपन ने। तो दिस इज द फोर्थ वेंट्रिकल, ये फोर्थ वेंट्रिकल। अब व्हाट इज दिस न्यूक्लियस ऑफ? यस यस, वेरी गुड। व्हाट इज दिस न्यूक्लियस ऑफ? दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ सिक्स्थ नर्व। ये न्यूक्लियस ऑफ सिक्स्थ नर्व। एंड व्हाट इज दिस न्यूक्लियस ऑफ? ये है न्यूक्लियस ऑफ सेवेंथ नर्व, फेशियल नर्व। एंड ये जो फाइबर्स ऑफ फेशियल नर्व है ना बच्चों, फाइबर्स ऑफ फेशियल नर्व ऐसे नहीं निकलते। जो फाइबर्स ऑफ फेशियल नर्व है ना, ये एब्ड्यूसेंस न्यूक्लियस के पीछे जाते हैं। दे वाइंड अराउंड द एब्ड्यूसेंस न्यूक्लियस। एंड जब ये ऐसे वाइंड करते हैं, जब ये ऐसे टर्न करते हैं, ये बाहर 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 की तरफ एलिवेशंस बनाते हैं। देखो, ये जो एलिवेशन बन गया, ये एलिवेशन अपन बाहर से देख रहे हैं। वी आर लुकिंग फ्रॉम आउटसाइड, अपन बाहर से इसको देख रहे हो। एंड दिस एलिवेशन इज द फेशियल कॉलिकुलस। ये एलिवेशन को आप बोलोगे फेशियल कॉलिकुलस। इज दिस क्लियर? तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज फेशियल कॉलिकुलस। ये देखिए, ये जो एलिवेशन है ना, ये है फेशियल कॉलिकुलस। ये जो दो एलिवेशन दिखते हैं, ये फेशियल कॉलिकुलस है। बट अब ये सर्कल दिखता है, गोल दिखता है, बिकॉज आप पूरा ब्रेन स्टेम देख रहे हो। अगर आप पूरा ब्रेन स्टेम देखोगे तो ये सर्कल दिखेगा। अगर आप ये सेक्शन लोगे, इफ यू टेकिंग अ सेक्शन लाइक दिस, तो द फेशियल कॉलिकुलस विल बी सीन दिस। एक मिनट, अगर आप सेक्शन लोगे तो ये फेशियल कॉलिकुलस ऐसे दिखेगा, ऐसे। abducens nerve surrounding the facial nerve, नहीं स्मरण्या, अरे बच्चे स्मरण्या, abducens nerve facial nerve को सराउंड नहीं करते। इट्स द facial nerve which surrounds the abducens nucleus, right?
दीज आर द सी एक मिनट, दीज आर द फाइबर्स ऑफ फेशियल नर्व. ये जो फाइबर्स ऑफ फेशियल नर्व है ना, ये एब्ड्यूसेंस न्यूक्लियस को वाइंड करता है. दे टर्न अराउंड द एब्ड्यूसेंस न्यूक्लियस, एंड जब ये ऐसे टर्न करते हैं, ये बाहर 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 की तरफ एलिवेशंस बनाते हैं. एंड ये जो एलिवेशंस है ना, ये अपन बाहर से देख रहे हैं. एंड ये जो एलिवेशन आप बोलते हो इसको फेशियल कॉलिकल. दिस इज क्लियर. So students, tell me, who forms the facial colliculus? Who forms the facial colliculus? Any guesses? ये facial colliculus बनाता कौन है? Yes. Any guesses, students? Who forms the facial colliculus? The fibers of नहीं नहीं. Who forms the facial colliculus? The fibers of facial nerve. Fibers of facial nerve. Okay, the fibers of facial nerve. And which is the nucleus beneath the facial colliculus? Which is the nucleus beneath the facial colliculus? Any guesses? Fibers of facial nerve forms the facial colliculus, and which is the nucleus of facial colliculus? Ah, which is the nucleus beneath the facial colliculus? Abducens. Abducens. Very good, very good. ये MCQ आता है, ये MCQ आता है. चलो students, now going to the floor of the fourth ventricle. ये कौन बनाता है? ये medulla है, ये medulla. Pons हो गया, pons is done. Pons में क्या दिखता है? Facial colliculus. अब medulla में आइए, medulla. What is this triangle known as? ये जो ट्राइंगल दिखता है ना, इसका नाम है हाइपोग्लॉसल ट्राइंगल. हाइपोग्लॉसल. एंड ये जो ट्राइंगल है, इसका नाम है वेगल ट्राइंगल. हाइपोग्लॉसल ट्राइंगल एंड वेगल ट्राइंगल. हाँ, दो ट्राइंगल्स दिखते हैं, दो ट्राइंगल्स दिखते हैं. जेनिकुलेट गैंग्लियन नहीं है ये कुलदीप्ति. जेनिकुलेट गैंग्लियन ये नहीं है, जेनिकुलेट गैंग्लियन ये नहीं है. जेनिकुलेट गैंग्लियन अलग होता है. तो अपन कहाँ पे? अपन फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल में. विच पार्ट? मेडुला के अंदर. मेडुला के अंदर दो ट्राइंगल्स देखोगे आप. ऊपर वाला हाइपोग्लॉसल ट्राइंगल, नीचे वाला वेगल ट्राइंगल. तो ये दो ट्राइंगल्स एलिवेशंस होते हैं, ये एलिवेशंस होते हैं. अब ये एलिवेशंस कैसे बनते हैं, तो वो देखने के लिए अपन सेक्शन लेते हैं. टेकिंग अ सेक्शन हियर. सेक्शन लेते हैं. देखिए, देखो ये कौन सा न्यूक्लियस है बच्चों? ये कौन सा न्यूक्लियस है? देखिए देखिए देखिए, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ ग्लॉसल नर्व. ये न्यूक्लियस होता है हाइपोग्लॉसल नर्व का. एंड ये जो न्यूक्लियस है ना, हाइपोग्लॉसल नर्व, ये न्यूक्लियस ये बाहर की तरफ एलिवेशन बनाता है. दिस एलिवेशन आप बाहर से देख रहे हो, एंड ये एलिवेशन को आप बोलते हो हाइपोग्लॉसल ट्राइंगल. हाइपोग्लॉसल ट्राइंगल. तो ये हाइपोग्लॉसल ट्राइंगल, ये जो एलिवेशन होता है, ये कौन बनाएगा? हाइपोग्लॉसल. हाइपोग्लॉसल. एंड व्हाट इज दिस ट्राइंगल? ये न्यूक्लियस कौन है? ये वेगल न्यूक्लियस. वेगल न्यूक्लियस. एंड ये जो डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस है, ये एलिवेशन बनाते हैं यहाँ पे. व्हाट इज दिस एलिवेशन एज वेगल ट्राइंगल. वेगल ट्राइंगल. तो हाइपोग्लॉसल ट्राइंगल कौन बनाता है? हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस. एंड वेगल ट्राइंगल कौन बनाएगा? द डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ this dorsal nucleus of vagus. ये जो elevation बनाएगा, that is vagal triangle. Am I clear to all of you students? Yeah, perfect. Dorsal nucleus of vagus, huh? Dorsal nucleus of vagus. Okay, I hope this is clear to all of you. चलो answer this, students. Let us discuss something about this. बहुत MCQs आते हैं इस पे. brainstem पे. brainstem. हाँ, ये कौन है? This is midbrain. ये कौन है? pons. ये कौन है? medulla. ये कहां से देख रहे हो? विच व्यू इज दिस? कम ऑन स्टूडेंट्स, ये कहां से देख रहे हो? आगे से देख रहे हो कि पीछे से देख रहे हो? वेयर आर यू लुकिंग दिस फ्रॉम? फ्रंट और बैक? एनी गेसेस? आर यू लुकिंग दिस फ्रॉम फ्रंट और आर यू लुकिंग दिस फ्रॉम बैक? एंटीरियर. इजी. डॉर्सल नहीं है ये. व्हाई इज दिस एंटीरियर? कैन एनीवन टेल मी ये एंटीरियर व्यू क्यों है? जस्टिफाई करिए इसको. कुलदीप्ति आता, जस्टिफाई करिए. व्हाई इज दिस एंटीरियर व्यू? Why is this anterior? If I say it is posterior, तो justify करना इसको. ये anterior है because जितने भी cranial nerves है ना बच्चा, नहीं नहीं वो नहीं है, नहीं नहीं वैसे नहीं है. जितने भी cranial nerves है ना, वो merge होते हैं anterior aspect of the brainstem.
The fibers of all the cranial nerves कहाँ से emerge होते हैं? Anterior aspect of the brain stem से, except बस एक cranial nerve है ये. There's only one cranial nerve जो पीछे से आती है, जो dorsal aspect से आती है. बाकी जितने भी cranial nerves हैं ये आगे से आएंगे. There's only one cranial nerve जो पीछे से आती है. Who's that? Which is the only cranial nerve which emerges from the dorsal aspect. Any guesses? Fourth. Very good. That's the fourth cranial nerve. That's a trochlea nerve. हाँ, that's the only cranial nerve जो पीछे. Okay. अब ये जो brain stem है, how is it connected to the cerebellum? The brain stem, how is it connected to the cerebellum? वहाँ पे 3 peduncles होते हैं. Peduncles. एक होता है superior, एक होता है middle, एक होता है inferior cerebellar peduncle. 3 peduncles होता है. Superior cerebellar peduncle, middle cerebellar peduncle, inferior cerebellar peduncle. तो superior क्या कनेक्ट करेगा? The midbrain to the cerebellum. middle cerebellar peduncle क्या कनेक्ट करेगा? ये middle cerebellar peduncle है, ये pons को cerebellum की तरफ कनेक्ट करेगा. and ये है inferior cerebellar peduncle. This is going to connect the medulla to the cerebellum. Medulla to the cerebellum. ठीक है? So now you tell me, which is this nerve? This is the third nerve. What is this nerve? Fourth nerve. Okay, MCQ है, the nerve attached at the junction of pons with the middle cerebellar peduncle. I'll put a star here. You tell me which nerve is this. Inferior peduncle connects not to the spinal cord. अच्छा, spinal cord को नहीं, medulla को connect करता है. Medulla. Tell me what is the star nerve? Fifth nerve, trigeminal nerve. Very good. So the nerve which is attached at the junction of the pons and the middle cerebellar peduncle is fifth nerve. है ना, ये fifth nerve. What is this junction? What is this junction? This is the pontomedullary junction. ये pontomedullary junction है, and ये pontomedullary junction पे 3 nerves होते हैं. There are 3 nerves attached to the pontomedullary junction. So those 3 nerves, look, this is number 6, this is number 7, and number 8 nerve. 8 nerve. 6, 7, and 8. Okay. 6 nerve, 7 nerve, 8 nerve. So which is the most medial nerve at the pontomedullary junction? Pontomedullary junction पे सबसे medial nerve कौन सी होती है? 6. सबसे lateral nerve कौन सी होती है? 8. and बीच में कौन होता है? 7. 7 nerve के ये 2 parts होते हैं. Can anyone tell me what is this Roman number 1 and what is this Roman number 2? 7 nerve के 2 fibers होते हैं. एक होता है motor root of facial nerve, motor root, होता है सेंसरी रूट. सेंसरी रूट ऑफ फेशियल नर्व, है ना. फेशियल नर्व के 2 रूट्स होते हैं, एक होता है मोटर रूट, एक होता है सेंसरी. मोटर एंड सेंसरी रूट ऑफ फेशियल नर्व का दूसरा नाम क्या है? बोलिए बच्चों. सेंसरी रूट ऑफ फेशियल नर्व इज आल्सो नोन एज, एनी गेसेस? कम ऑन. सेंसरी रूट ऑफ फेशियल नर्व इज आल्सो नोन एज व्हाट? आंसर. Sensory root of facial nerve is known as nervus intermedius. Very good, Kuldipti. Very good. It's nervus intermedius. Nervus intermedius. और इसका दूसरा नाम है nerve of Wristberg. Nerve of Wristberg. है ना. मोटर रूट होता है एंड सेंसरी रूट होता है. सेंसरी रूट का दूसरा नाम है nervus intermedius और the nerve of Wristberg. Nerve of Wristberg. Fine. अब ये कौन है? नंबर 1, ये है नंबर 2 एंड ये है नंबर 3. एनीवन? व्हाट इज दिस नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3? ये सब स्पॉट्स में आता है, ऑस्पी में आता है. वरन्या, ये सब ऑस्पी पे आता है. नंबर 1 कौन है? नंबर 2 कौन है? नंबर 3 कौन है? आंसर दिस बच्चों. वेरी गुड. नहीं, वो एलिवेशन पूछ रहा हूँ मैं. एलिवेशन का नाम पूछ. व्हाट इज दैट नंबर 1 एलिवेशन? इसका नाम है olive. नहीं, नंबर 1 is pyramids. नंबर 2 कौन है? olive. नंबर 3 कौन है? inferior cerebellar peduncle. नंबर 1 है pyramids, नंबर 2 है olive, and number 3 the inferior cerebellar peduncle. So what is the nerve present between the pyramids and the olives? Answer this. Between the pyramids and the olives, what is this nerve? This is the hypoglossal nerve. Pyramids and olives के बीच में जो nerve होती है, that is hypoglossal nerve.
and between the olives and the inferior cerebellar peduncle, that is 9, this is 10, this is 9, 10th and cranial accessory. 9, 10th and 11th cranial accessory. Hello Sachin, ठीक है ना? Between the olives and the inferior cerebellar peduncle 3 nerves होती हैं, 9, 10th and cranial accessory. What is this nerve? Any guesses? ये nerve कौन है? What is this nerve? चलो बच्चों बोलो जल्दी. What is this nerve? I'll tell you some important thing. ये जो मैंने एरो लगाया ना, वो भी एक्सेसरी है. वो कौन सी एक्सेसरी है? स्पाइनल एक्सेसरी. स्पाइनल एक्सेसरी स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होता है. स्पाइनल एक्सेसरी अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. द क्रेनियल एक्सेसरी अराइजेस इन द मेडुला. ओके, नाउ लिसन 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 लिसन. अब दिस स्पाइनल एक्सेसरी जो स्पाइनल कॉर्ड में अराइज होती है, उसको क्रेनियल एक्सेसरी को जाके मिलना है. तो वो कैसे जाएगी? क्रेनियल एक्सेसरी स्कल के अंदर है, स्पाइनल एक्सेसरी स्कल से बाहर है. So how does the spinal accessory join the cranial accessory? How does it go inside the skull? ये स्कल के अंदर कैसे जाती है? बताइए 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 बताइए. ये जो स्पाइनल एक्सेसरी है वो स्कल के अंदर कैसे जाती है? थ्रू द फोरामेन मैग्नम. ये फोरामेन मैग्नम स्कल के अंदर जाती है. विच कंपार्टमेंट? कौन से कंपार्टमेंट से जाती है? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरामेन मैग्नम. ये जो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है ना, ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरामेन मैग्नम से स्कल के अंदर जाती है. इट जॉइंस विद द क्रेनियल एक्सेसरी. अब ये कंप्लीट एक्सेसरी नर्व बनेगा. एंड हाउ डज दिस एक्सेसरी नर्व गेट्स आउट थ्रू द स्कल? ये कंप्लीट एक्सेसरी नर्व बन गया. हाउ डज द एक्सेसरी नर्व गेट आउटसाइड द स्कल? टू जुगुलर फोरामेन. है ना, 9, 10, 11 है ना, 9, 10, 11 एक्सेसरी नर्व स्कल से बाहर आ गई. वापस ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, क्रेनियल रूट एंड स्पाइनल. क्रेनियल एक्सेसरी एंड स्पाइनल एक्सेसरी वापस डिवाइड हो गई ना. क्रेनियल एक्सेसरी, आई जस्ट राइट इट, क्रेनियल एक्सेसरी एंड स्पाइनल, तो कंफ्यूज नहीं हो. क्रेनियल एक्सेसरी एंड स्पाइनल एक्सेसरी समझ में आ रहा है ना ये बच्चों? देखो देखो, वंस अगेन जो स्पाइनल एक्सेसरी होती है, उसका ओरिजिन क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड, स्कल के बाहर है. जो क्रेनियल एक्सेसरी है वो मेडुला से अराइज होती है. अब ये जो स्पाइनल एक्सेसरी है वो फोरामेन मैग्नम से जाएगा. इट विल जॉइन विद द क्रेनियल एक्सेसरी. ये कंप्लीट नर्व बनेगा. अब ये जो एक्सेसरी नर्व है ये जुगुलर फोरामेन से बाहर निकलेगा. एंड जैसे ये एक्सेसरी नर्व जुगुलर फोरामेन से बाहर निकलती है, ये डिवाइड होती है इनटू क्रेनियल एंड स्पाइनल पार्ट. अब ये स्पाइनल पार्ट क्या सप्लाई करता है? स्पाइनल पार्ट सप्लाइज द sternocleidomastoid, then comes in the posterior triangle of the neck. है ना, ये sternocleidomastoid को सप्लाई करती है, posterior triangle में आती है, lies on, बोलिए, lies on which muscle? स्पाइनल एक्सेसरी नर्व posterior triangle of the neck में कौन से मसल पे थी? ट्रेपेजियस नहीं, ट्रेपेजियस नहीं. एक बार वो sternocleidomastoid को सप्लाई किया, फिर posterior triangle में आ गई. वो कौन से मसल पे होती है? levator scapulae. वेरी गुड. lies on the levator scapulae. lies on the levator scapulae. very good. longest colli नहीं, lies on the levator scapulae and then supplies the trip. पता है ना ये आपको? ये आपको पता है? तो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व पहले sternocleidomastoid को सप्लाई करती है, फिर posterior triangle में आती है. इट lies on the levator scapulae, फिर जाके trapezius को सप्लाई करेगा. परफेक्ट है, परफेक्ट है, वेरी गुड. अब बोलो क्रेनियल एक्सेसरी क्या जॉइन करेगी? क्रेनियल एक्सेसरी जॉइंस विद वेगस. अब ये बनता है वेगो एक्सेसरी कॉम्प्लेक्स. वेगो एक्सेसरी कॉम्प्लेक्स, और ये बनता है फैरेंजियल प्लेक्सस. फैरेंजियल प्लेक्सस. ओके, ये जो क्रेनियल एक्सेसरी है ना, ये क्या करते हैं? ये वेगस को जॉइन करते हैं. ये बनता है वेगो एक्सेसरी कॉम्प्लेक्स और द फैरेंजियल प्लेक्सस. अब बोलो बच्चों, चलो ये फटाफट खत्म करते हैं. अब दिस फैरेंजियल प्लेक्सस सप्लाइज, एनीवन? सप्लाइज, क्या सप्लाई करता है ये फैरेंजियल प्लेक्सस? व्हाट आर यू नो, यू टेल मी. ये सब वाइवा में पूछना है बच्चों. दिस फैरेंजियल प्लेक्सस सप्लाइज all the muscles of soft palate.
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब वाइवर्स में पूछते हैं. ऑल द मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट, पहले सॉफ्ट पैलेट से स्टार्ट करते हैं. ऑल द मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट एक्सेप्ट एक्सेप्ट except stylopharyngeus नहीं बच्चा, लक्षणा. It supplies all the muscles of soft palate except. बोलिए. This is a very important MCQ, very important Viva question. So pharyngeal plexus or the vago accessory complex supplies all the muscles of soft palate except tensor palati. Very good, Kuldipti. Except tensor palati, and this tensor palati is supplied by what? Tensor palati को कौन सप्लाई करता है? Mandibular nerve. Except tensor palati which is supplied by mandibular nerve. ठीक है ना? Because tensor palati कौन से pharyngeal arch में form होता है? First pharyngeal arch में form होता है. So this pharyngeal plexus supplies all the muscles of the soft palate except tensor palati which is supplied by mandibular nerve. Second, it supplies all the circular muscles of the pharynx. Circular muscles of the pharynx. Ah, very good. Very good. Except. Answer this. It supplies all the circular muscles of the pharynx except. वैसे 3 सर्कुलर मसल्स है अपने पास, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, मिडिल कंस्ट्रिक्टर एंड इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर. बराबर. इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है थायरोफैरिंजियस पार्ट एंड दूसरा होता है क्रिकोफैरिंजियस पार्ट. अब बोलो सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, मिडिल कंस्ट्रिक्टर, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर, उसके 2 पार्ट्स, एक क्रिकोफैरिंजियस पार्ट, एक थायरोफैरिंजियस पार्ट. वेरी गुड. तो ये क्या सप्लाई करता है? ऑल द सर्कुलर मसल्स ऑफ द pharynx एक्सेप्ट द क्रिकोफैरिंजियस पार्ट. Cricopharyngeus part of inferior constrictor. Cricopharyngeus part of inferior constrictor. It is supplied by external or recurrent laryngeal nerve. It is supplied by external or recurrent laryngeal nerve, and it also supplies all longitudinal of the pharynx. All longitudinal muscles of the pharynx except stylopharyngeus. Stylopharyngeus which is supplied by बोलिए. Stylopharyngeus को कौन सप्लाई करता है? हाँ, it supplies all the longitudinal muscles of. वैसे longitudinal muscles कितने होते हैं? एक palatopharyngeus है, एक salpingopharyngeus है, and एक stylopharyngeus. Very good. Except stylopharyngeus which is supplied by glossopharyngeus. Perfect. Very nice. Very good. देखो अपन कहाँ से कहाँ, मतलब ना head and neck and neuroanatomy is very much correlated, है ना? Head and neck and neuroanatomy is very much correlated. बहुत correlate होता है. चलो एक लास्ट स्लाइड दिखा था आपको, लास्ट स्लाइड ऑफ द डे. बच्चों यू हैव डन वेरी वेल. बहुत अच्छे से प्रिपेयर करे हो आपने, and you've been answering very well in all this series, in all the sessions of FARRE series of anatomy. आपने बहुत अच्छा आंसर किया है, and you will definitely do well in the exams. For more details you can log on to the MedEd app, and FARRE series के books भी available हैं, so you can get those books. Simple language में लिखे हुए answers हैं, to understand line diagrams ड्रॉ किए हैं. चलो ये क्या व्यू है? ये लास्ट सेक्शन है ब्रेन का बच्चों. ये है ना हॉरिजॉन्टल सेक्शन है ब्रेन, हॉरिजॉन्टल सेक्शन. एक बार फिर से टेल मी हु इज दिस नंबर 1. स्टार्ट. हॉरिजॉन्टल सेक्शन है ब्रेन का. व्हाट इज दिस नंबर 1? ये हमेशा पूछते हैं वाइवा में ये सेक्शन. बोलिए व्हाट्स दिस नंबर 1? क्विक. Corpus callosum. Very good. Corpus callosum. What is this number 2? What is this number 2? What is this number 2? लेता हूँ. This is septum pellucidum. ये septum pellucidum. What is this number 3? Number 3 कौन है? लेता हूँ बाद में. ये कौन है? Number 3 कौन है? Phonics.
हाँ, ये नंबर 1 कॉर्पस कैलोसम है, 2 सेप्टम पेरिजिडियम है, 3 फॉनिक्स है। अब बोलो बच्चों, ये क्या कैविटी है, ये कौन है, ये कौन है? व्हाट इज दिस कैविटी? व्हाट इज दिस कैविटी? दिस इज द लैटरल वेंट्रिकल। लैटरल वेंट्रिकल, अगर ये लैटरल वेंट्रिकल है, व्हाट इज दिस नंबर 1 एंड व्हाट इज दिस नंबर 2? नंबर 1 कौन है? वो लैटरल वेंट्रिकल है बच्चा, लैटरल वेंट्रिकल है। तो व्हाट इज दिस नंबर 1? नंबर 1 is the caudate. Number 1 is the caudate nucleus. Number 2 is the thalamus. Thalamus, 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 thalamus. Then what is this cavity? ये कौन है? थर्ड वेंट्रिकल है ना। ये सेंटर, दो थैलेमस देखोगे ना, तो थैलेमस के सेंटर में क्या होगा? थर्ड वेंट्रिकल। बस ये याद रखना। तो थैलेमस के बीच में होता है थर्ड वेंट्रिकल। एंड व्हाट इज दिस बच्चा? व्हाट इज दिस? दिस इज द लेंथ। ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है जिसके दो पार्ट्स हैं। बाहर होता है प्यूटामेन, बाहर होता है प्यूटामेन, अंदर होता है ग्लोबस पैलिस। बाहर प्यूटामेन, अंदर ग्लोबस पैलिस। ठीक है। नाउ यू टेल मी व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? व्हाट इज दिस वी शेप स्ट्रक्चर? दिस इज द इंटरनल कैप्स। ये होगा इंटरनल कैप्स। तो व्हाट इज दिस लिम्ब? ये लिम्ब क्या होगा? ये होगा एंटीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल। ये क्या होगा? बेंड जेन्यू ऑफ इंटरनल कैप्सूल। ये होगा पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल। ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस आप जाओगे, इसका नाम है रेट्रो पार्ट ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। एंड एक लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के नीचे जाएगा, इसको आप बोलोगे सब लेंटिफॉर्म ऑफ इंटरनल कैप्सूल। समझ गए ना? पार्ट्स ऑफ इंटरनल कैप्सूल क्लियर है? तो एंटीरियर लिम्ब किसके बीच में होगा? एंटीरियर लिम्ब इज बिटवीन द कॉर्डिक न्यूक्लियस एंड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। पोस्टीरियर लिम्ब किसके बीच में होता है? थैलेमस एंड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। थैलेमस एंड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के बीच में होता है पोस्टीरियर लिम्ब। रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट कहाँ होता है? बिहाइंड द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। एंड सब लेंटिफॉर्म पार्ट कहाँ होता है? बिलो द लेंटिफॉर्म। अब जस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलता हूँ, जस्ट टेल मी कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स। ये एमसीक्यूज में आता है। कॉर्टिको न्यूक्लियर fibers pass through, answer this, corticonuclear fibers pass through which limb of the internal capsule? बस इंपॉर्टेंट फाइबर्स बोल रहा हूँ। corticonuclear fibers pass through genuine. Very good कुलदीप्ति, excellent, you've been answering very well, very good. So corticonuclear fibers कहाँ से जाते हैं? genuine. कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स कहाँ से जाते हैं? कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स। बस ये है ना, ये आपको याद रखना ही है, ये आता ही है एमसीक्यूज में। तो कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स कहाँ से जाते हैं? पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटर, पोस्टीरियर लिम्ब। कॉर्टिकोन्यूक्लियर फाइबर्स जीन्यू से जाएंगे, कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स पोस्टीरियर लिम्ब से जाएंगे। ऑप्टिक रेडिएशन, ऑप्टिक रेडिएशन कहाँ से जाएगा? ऑप्टिक रेडिएशन कहाँ से जाएगा? रेट्रो lentiform part of the internal capsule, retrolentiform part and auditory radiation. बस ये याद रखना बच्चा, auditory radiation will pass through sub lentiform part. Optic radiation will pass through the retrolentiform part and auditory radiation by the sublentiform part of internal capsule. Sublentiform part of internal capsule. हाँ ठीक है बच्चों, एक लास्ट चीज बोलता हूँ बिफोर आई क्लोज। ये देखो ना, वेगस है ना, वेगस क्विकली, वेगस दो नर्व्स देती है, दो नर्व्स। अगर इंटरनल कैप्सूल हैज गॉट लार्ज नंबर ऑफ सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स, नो अगर डैमेज होता है तो सेंसरी मोटर लॉस होता है इजी। तो वेगस डिवाइड्स इनटू एंड सुपीरियर लैरिंजियल, सुपीरियर लैरिंजियल, बस ये टेबल याद रखना, एंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। Superior laryngeal is a nerve which arch, fourth arch. Recurrent laryngeal nerve is a nerve, sixth arch. अब बच्चों जो सुपीरियर laryngeal nerve है वो डिवाइड होती है एक्सटर्नल laryngeal nerve एंड इंटरनल laryngeal nerve. अब बोलो what is the external laryngeal nerve supply? Answer this. Quick, एक short, fast, a quick rapid revision. External laryngeal nerve क्या supply करती है? Superior laryngeal divides into an external, internal. The external laryngeal nerve supplies. Any guesses?
External laryngeal nerve supplies. This you should know. Should know. नहीं नहीं बच्चा, अथर्व नहीं, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व क्या सप्लाई करती है? एक मसल सप्लाई करती है, एक्सटेंसिव मसल. एक्सटेंसिव मसल. Yes, it supplies the cricothyroid. Cricothyroid. It supplies the cricothyroid. नहीं, external laryngeal nerve supplies the cricothyroid muscle. And what is the action of cricothyroid? It tensor of vocal cord. Tensor of vocal cord. Internal laryngeal nerve क्या supply करती है? It supplies the sensory supply above the vocal folds. Sensory above the vocal fold. Easy, just listen to what I'm telling. These are very important things. Sensory supply above the vocal folds. Okay. Above the vocal folds. Recurrent laryngeal nerve supply क्या करती है? All muscles of the larynx except cricothyroid. All muscles of the larynx except cricothyroid and sensory supply below the vocal fold. Sensory supply below vocal fold. बस ये याद रखना. हाँ, you just remember those flow charts. ये flow charts जितना याद रखोगे उतना easy होगा. ठीक है? And just tell me, bacha, all the muscles of tongue are supplied by which nerve? All the muscles of tongue are supplied by which nerve? All the muscles of tongue are supplied by hypoglossal nerve, except all the muscles of the tongue are supplied by hypoglossal nerve, except answer this, except one which is not supplied by hypoglossal, except palatoglossus. Palatoglossus is supplied by vagoaccessory complex. All the muscles of tongue are supplied by hypoglossal nerve except palatoglossus. कौन supply करेगा? Vagoaccessory. Okay, students, so I hope you've understood everything, and thank you for a very, very interactive session of this neuroanatomy and this FARRE series of anatomy. This was a way in which PW, the faculties in PW could rapidly revise the entire syllabus for you. I hope it was beneficial for all of you, and you will come up with very good marks, flying colors, because you'll be answering very well. For details, you can log on to PW MedEd apps. FARRE books series are available at your doorsteps. In case of doubts, write comments. Okay, thank you once again, and all the best. All the best. Thank you.